सकल लोक साहुड़े वंदे निंदा न करे रे। सकल लोक साहुड़े वंदे निंदा न करे रे। गाछ गाछ मन निश्चल राखे, गाछ गाछ मन निश्चल राखे, जन जन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर श्री जी ने मात रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर श्री जी ने मात रे। जीवा थकी असत्य न बोले, जीवा थकी असत्य न बोले, बर्तन न बजाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए, पीर पराई जाने रे। हर दुखे उपकार करे तोए, हर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने। वैष्णव जन तो तेरे कहिए, पीर पराई जाने रे। पीर पराई जाने रे, पीर पराई जाने रे। Organized by Sanatan Sangeet Sanskriti to honor the incredible creativity, imagination, and ideas that Delhi generates, sustains, and embodies. This year we present Bapu Ki Dilli as a tribute to Mahatma Gandhi on his 150th birth anniversary, and to celebrate the life and ideology of Bapu, the father of our nation, through plays, recitals, readings, and discussions on February 22nd, 23rd, and 24th at the India International Centre. I would like to extend a warm welcome to our esteemed guest, Srimati Tara Gandhi Bhattacharya, the granddaughter of the Mahatma. She is the daughter of Gandhiji's youngest son, Devdas Gandhi. Tara ji has dedicated her life to working for Gandhi Smriti and Darshan Samiti. She works with Kasturba Gandhi National Memorial Trust, founded by Gandhiji in the memory of his wife, to serve needy women and children of rural India. She has also been involved with the movement to protect the rivers and environment through Save the Ganga movement. In 2016, Tara ji was decorated with one of the France's top honor, the Order of the Arts and Letters, for her contribution in promoting peace, solidarity, culture, education, and development. Thank you, ma'am, for gracing us with your presence today. I would also like to welcome Shri Ashok Vajpayee ji, who is a major cultural figure of India,
with several books on poetry, critique, and art to his credit. Vajpayee ji is responsible for the main idea behind Words in the Garden and has been closely associated with the festival since its inception. Thank you, Vajpayee ji, for your presence. Now I request Vajpayee ji to take this forward. We are in the 105th year of Mahatma Gandhi. We can't be farthest from him as of now, in many ways. But we'll not dilate upon that for a while. Delhi had many great residents who have made Delhi what it is. And one of them was Mahatma Gandhi. Although he did not live here for too long, kept on coming and going. The last period of his life, which he spent here, and was most cruelly murdered, is a very interesting period. When India became independent on 15th August 1947, the Mahatma was not here. The Mahatma was away trying to douse the communal fires which have become rampant in Noakhali. And it's very interesting that many Muslims who decided to remain in India were feeling very uncomfortable and unsafe. They were all huddled in a camp in Mehroli. And some of these Muslim women kept personal diaries. The day Mahatma arrived in Delhi, one of these Muslim ladies recorded in her diary, "The Mahatma has come, now we are safe." This was the moral caliber and force of a man. Incidentally, before that, he had been in Calcutta, where again there was, sorry, I'm under the cloud, as they say, although I want to be above them, but that's another matter. There was huge riots taking place among Hindus and Muslims in Calcutta. And Gandhiji decided to be there. And he took one of his last but one fast there, that if the two communities do not come together and promise that they will not fight, he would lay down his life. His condition was deteriorating. About another 4 hours, the doctor said he could possibly survive. Then Sohrawardi, one of the most cruel political leaders, and the Hindu leaders came together, gave an undertaking in writing that we will not fight. And Lord Mountbatten, who was the Viceroy of India, wrote, "What an army of 80,000 could not do, a man about to be 80 did it alone." That was what happened before. And Gandhiji comes to Delhi. Gandhiji does not stay. He stays in Bhangi Colony. Many of you would not even know where the Bhangi Colony is. दिल्ली इतनी चिकनी चुपड़ी चमकदार हो गई है, अब किसको पता है कि भंगी कॉलोनी कहाँ है? ये जिसको बिरला मंदिर कहते हैं, हालांकि मंदिर तो बेचारा लक्ष्मी नारायण का है, उसको बिरला मंदिर के नाम से ही मशहूर है, उसके पास है ये। अब जो शायद वाल्मीकि वगैरह कुछ कहने लगे हैं, तो वहां ये कॉलोनी थी और गांधी जी वहां रहते। तो प्रार्थना प्रवचन उनमें से एक का छोटा सा अंश मैं आपको सुनाता हूं।
वो कहता है, कोई हिंदू पुरोहित है जो आके कहता है, आप इस मंदिर में प्रार्थना मत कीजिए, लेकिन मंदिर तो मेहतरों का है। मेहतर भाई मेरे आसपास रोकर आते हैं, कहते हैं कि हमारे मंदिर में आकर ये दूसरे लोग ऐसी बाधा क्यों डालते हैं। छोटे भाइयों को मैं क्या दिलासा दूं? मैं उनका बड़ा भाई हूं, मैं आला भंगी हूं, मैं बाहर की सफाई करता हूं, बाहर के पाखाने उठाता हूं, लेकिन हमारे सबके दिल में भी मैला भरा हुआ है। असली भंगी वो भीतर की सफाई भी करना होती है, जो मैं कर रहा हूं। अगर इस मैले को हमने अपने दिल से नहीं निकाला, अगर ऊंच नीच की यह बात हम में से नहीं हटी, तो हिंदू धर्म बचने वाला नहीं है। आज तक ये बचा हुआ है क्योंकि ये बहुत बड़ा धर्म है, वो मरते मरते भी टिका है। फिर भी अगर हमने ऊंच नीच का भाव न छोड़ा, तो ये बड़ा होने पर भी कमजोर हो जाए। ये थोड़े दिन पहले की बात है, उनके ये जीवन के आखिरी दिन हैं, और गांधी ने जो लड़ाइयां शुरू की थी, वो सिर्फ देश की आज़ादी की लड़ाई उनमें से एक भर थी। ऊंच नीच को हटाने की, औरतों को आगे लाने की, हरिजनों को समाज में आदर देने की, ये सब लड़ाइयां एक साथ लड़ते थे। Our freedom struggle was not merely freedom from the political and political rulers. It was also a freedom being waged against a system, against untouchability, against poverty, against many aspects which were the features of Indian society at that time. Now, there are not many today left who would have known Gandhiji of that time during his last days. Taraji is one of them. We like to know from her as to what was happening in her childhood area with the presence of Bapu. And before she tells you the story, I'll tell you anecdote. Quit India resolution was being drafted. Sevagram. Bapu ki kutia had a mud floor. They were all sitting there. Apart from Bapu, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad, Sardar Patel, Khan Abdul Khan, Acharya Dani, Rajendra Prasad, etc. The child came while the resolution is being drafted. The child came and he said, "Bapu, आपने कहा था आप मेरे साथ खेलेंगे तो चलो." The Mahatma adjourned the meeting, went away with the child. 15 मिनट बाद जब वो लौट के आए, सरदार पटेल बहुत लाल पीले हो रहे थे. And he said in anger, "Bapu, we are drafting with India resolution, and you just went away like that." Bapu smilingly said, "Sardar, resolution can wait, a child cannot." So this was approach at the nadir of the struggle. This man could afford to be unfailingly human and did not allow politics or religion or whatever override his basic humanness. In fact, you are a human being and you must respond to other human beings. But Taraji, बहनों, कुछ मैं हिंदी और अंग्रेजी मिला के बोलूँगी जैसे कि हम बोलते हैं। तो अशोक भाई, आपने मेरा परिचय दिया नहीं, आपने परिचय दिया। पहले तो मैं ये कहूँगी, महात्मा गांधी की पोती, द ग्रैंड डॉटर। एक तो नॉट द ग्रैंड डॉटर, अ ग्रैंड डॉटर, बट नॉट ऑफ महात्मा, बट मोहनदास करमचंद गांधी, a biological granddaughter. And today he is the राष्ट्रपिता, और हम सब उसके
हम सब का हक है एक साथ राष्ट्रपिता के। तो महात्मा के की पोती कहलाने लायक तो वो आध्यात्मिक स्तर मेरा नहीं है। हाँ, खून में ज़रूर है। उनको यात्राओं का शौक़ था, मुझे भी यात्राओं का शौक़ है। उनके सफ़ेद रंगों में बहुत रंग मुझे दिखाई देते थे, लेकिन मेरे शायद सब रंगों में भी उतने रंग नहीं होंगे जितने गांधी के सफ़ेद कपड़े में थे। अशोक भाई, आज आपने जो बात शुरू करी जैसे बहुत अच्छी थी, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो आपने जो स्वच्छता की बात लगभग करी कि बाहर की सफाई और आंतरिक सफाई, इसके बारे में मैं अवश्य कहूँगी कि ये जो स्वच्छता अभियान बहुत अच्छा है, लेकिन इसको हम सिर्फ स्वच्छता में न समझें। जब तक हमारी मानसिक हिंसा नहीं जाएगी तब तक स्वच्छता नहीं होगी। स्वच्छता चाहिए। गंगा प्रदूषित नहीं है, यह हमारा मानव मानस हिंसक है जो गंगा को प्रदूषित कर रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। तो ये आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही, शायद मैं चूक जाती, लेकिन यह बच्चों के सामने, युवाओं के सामने, बच्चों के सामने यह रखना बहुत आवश्यक है कि स्वच्छता हमारा उद्देश्य है। हिंसक मानस हिंसा विहीन मानव मानस और प्रदूषण विहीन पर्यावरण, यह सब मनुष्य के मानस की उपज है। जितनी हिंसा हो रही है और एक तरह का भय का जो वातावरण है वो भी नकारात्मक हिंसा है। हमने पर्यावरण को इतना दूषित कर दिया है। जो हमारे 5 तत्व हैं उसमें 4 तत्वों को तो हमने कर ही दिया है, अब शायद शून्य को भी हम कर देंगे। और अशोक भाई, एक दार्शनिकता में कह रही हूँ कि मालविका जी, एक दार्शनिकता में कह रही हूँ कि हमारा शायद हमारे विचारों से हम शून्य को प्रदूषित कर सकते हैं। तो मुझे खैर अभी बात आती है बापूजी की। आपने कहा था कि आपने वाल्मीकि आश्रम, हरिजन आश्रम का नाम लिया, भंगी कॉलोनी। आपने साहस करके किया, इसलिए मैं आपका इसके लिए अभिनंदन करती हूँ कि ये साहस, ये कहना भी शब्द है, लेकिन हमने जब उसका उपयोग किया है तो कहने में हमें बहुत ही, हम शर्म से लेकिन कहना पड़ेगा, उसका नाम ऐसा पड़ा था, लेकिन अब वो वाल्मीकि आश्रम कहलाता है। वह स्वाधीनता के पहले की बात, वो जो आपने किस्सा दोहराया था, शायद मुझे सुनने में समझने में गलती होगी, लेकिन वो बापूजी के मृत्यु के बहुत पहले नहीं था। वो था बापूजी जब आगा खां पहले से आ गए थे, कस्तूरबा उनकी संगिनी वहाँ पे खो गई थी, चली गई थी। तब बापूजी जब दिल्ली आए तो बहुत घूमे, सीधे तो नहीं, 1-2 जगह के बाद उस जगह में आए जो आज वाल्मीकि आश्रम कहलाता है। वो मेरे स्कूल सेंट थॉमस के बिल्कुल करीब था और मेरे पास भागते हुए लोग आए, मेरी स्कूल की लड़कियां, क्योंकि प्रोटेस्टेंट एंटी गांधी का स्कूल था। मैं इसलिए गई क्योंकि मुझे हमेशा नॉन कन्वेंशनल चीज़ अट्रैक्ट करती थी। मैंने अपने पिताजी से कहा मैं मॉडर्न स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे जाना है सेंट थॉमस मिस जयवुड। मिस जयवुड तो भाई चर्चिल की भक्त हैं, वो तो बापूजी का नहीं मानती हैं। मैंने कहा मुझे, फिर भी मैंने सुना है स्कूल की तारीफ सुनी है। खैर मेरे माँ बाप मान गए, उनका विवेक शायद बहुत अधिक था, वो समझ गए, उनकी दानिशमंदी बहुत थी। तो स्कूल में मैंने बहुत कुछ सीखा। और जब, लेकिन वो गांधी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहती थी, वो चर्चिल की भक्त थी। तो अशोक भाई, आज आपके सामने और मालविका जी के सामने और आप सबके सामने कहते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि सबको बहुत ये था स्कूल में कि ये तारा गांधी तो गांधी जी की पोती हैं, और अब उनके साथ हमारा स्कूल तो प्रिंसिपल को लगता था, लेकिन बेहद उम्दा औरत थी वो। और एक दिन मेरे पास दौड़ते हुए एक लड़की आई, तारा सुनो, हमारे पड़ोस में भंगी कॉलोनी है ना, वहाँ शायद बापूजी आके ठहरने वाले, गांधी जी ठहरने वाले। मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता। नहीं तारा, सच्ची बात है, आज हमने सुना है कल बापूजी गांधी जी आने वाले हैं, तुझे पता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैं भागते भागते मिस जयवुड के क्लास में गई और मैंने कहा मिस जयवुड, कैन आई गो टू द हाउस, माई होम, आई हैव टू आस्क माई फादर सम क्वेश्चन। शी सेड ऑल राइट। मैंने फ़ोन किया घर में कि मुझे ले जाइए। मैंने पिताजी को कहा, हमारे यहाँ तमिल, गुजराती और हिंदी, और अधिकतर हिंदी चलती थी। मैंने पिताजी को कहा, अप्पा क्या बापूजी हमारे स्कूल के पास आ रहे हैं? अप्पा ने कहा हाँ। मैंने कहा मैं फिर वापस स्कूल जाऊँ? उन्होंने कहा जाओ। फिर मैं वापस स्कूल आई। मैंने कहा बापूजी आ रहे हैं सचमुच में? तो जो स्कूल था हमारा, स्वाधीनता तब नहीं हुआ था, आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन हमारे स्कूल में आज़ादी आ गई। चलो चलो तारा, बापूजी के पास ले जाओ दूसरे रोज़।
मिस जयवुड, कैन आई गो टू सी माई ग्रैंडफादर? यस यू कैन गो। दोस्तों को लेके गई। बापूजी से मैंने कहा, बापूजी कि मैं आपके पास रहती हूँ, आपके स्कूल के पास, आपके इस भंगी कॉलोनी के पास। उन्होंने कहा, मुझे मालूम है, तेरे बाप ने मुझे बताया है। तो अब तो ऐसा करना कि अपने स्कूल में अपनी टीचर से, प्रिंसिपल से पूछना कि मैं शाम को चलने के लिए उस एरिया में, स्कूल के मैदान में चल सकता हूँ। एक तो फाटक है, उस फाटक को खोल के तुम्हारा लॉन आ जाता है, मैं वहाँ खेलूँगा, वहाँ मैं चलूँगा। तो मैं भागती हुई, मिस जयवुड, माई ग्रैंडफादर वॉन्ट्स टू वॉक इन द इवनिंग, कैन ही वॉक देयर? यस ऑफ कोर्स ही कैन वॉक। भागती भागती गई, बापूजी आप चल सकते हैं, चल सकते हैं। तो शाम को चलते रहते थे वहाँ। फिर बापूजी ने एक दिन कहा मुझे, शाम को मैं जाती थी, 3-4 बजे जाती थी, 3-4 बार जाती थी। बापूजी ने कहा, तारा तुम अंदर जाओ, मिस जयवुड को ले आओ और उनसे कहो, प्लीज मिस जयवुड को कहो कि मैं उनको थैंक्स कहता हूँ। तो मैं भागती भागती गई, मिस जयवुड, माई ग्रैंडफादर वॉन्ट्स टू थैंक यू। यस आई विल कम देयर। शी वेंट देयर टू द लॉन। मैडम, बापूजी ने कहा, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू, गिविंग मी द परमिशन टू वॉक हियर। दैट इज ऑल राइट मिस्टर गांधी, यू आर वेलकम। इतना ही कह के वो चली गई, उनको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं था। और बापूजी का वो काम करते हुए उनका एक ऐसा था कुछ कि जैसे वो आपने कहा ना, सहजता से बच्चे के साथ निकल गए। तो वही जो उनका था ना कि कुछ उनके लिए जो कुछ काम कहते थे वो करने में एक बड़ा आनंद आता था, लगता था हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उस ज़माने में ऐसा था, आपको लोगों को, बच्चों को तो पता ही होगा, ये स्वाधीनता के पहले की बात है, नोआखाली जाने के पहले की बात है। तो बापूजी ने कहा कि तारा तुम सुनो, तुम्हारा बाप तो पत्रकार है, तुम्हारे यहाँ बहुत से लिफाफे आते होंगे। मैंने कहा हाँ। तो तुम ऐसा करो, उन लिफाफों को लो, काटो, उसका बीच का जो हिस्सा है कागज़ का, उसका मेरे लिए एक नोटबुक बना के ले आओ, मैं उसको यूज़ करूँगा, क्योंकि मौन व्रत में मैं बोलता नहीं हूँ, लिखूँगा, और वैसे भी मुझे लिखने के काम आएंगे, तो ये काम कर मेरा। एक बाप और बेटे का बहुत मधुर संबंध था अशोक भाई, ये आपने पढ़ा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, इसकी तो मैं साक्षी रही हूँ। बापूजी के और बा के, कस्तूरबा के 4 बेटे थे, बेटी नहीं थी। और मेरे पिताजी सबसे छोटे थे, और बड़े बेटे और छोटे बेटे में बहुत बड़ा अंतर था। तो बड़े ताऊ के बच्चे और मेरे पिताजी के की उम्र लगभग एक सी थी। तो मैं घर आई वापस, अप्पा हमें सारे लिफाफे दो, ऑफिस के सारे लिफाफे दो। अप्पा ने सारे लिफाफे दिया, मैं लग गई काटने में, और एक तरह से बनाया, लिखा। फिर अप्पा ने लिया और उसको कहा ऐसे नहीं देना। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही ले जाऊंगी। उनका नहीं, उन्होंने नीचे से दफ्तर में, ऑफिस के दफ्तर से बढ़ई को बुलाया, कारपेंटर को, किसी को कहा भाई इसको तुम अच्छी तरह से काट दो, लाइन सिरे जो मुड़े हैं उनको करके अच्छा बनाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बापूजी के पास ऐसे नहीं ले जाऊंगा। मैंने, अप्पा ने कहा तुम ले तो जाओ। फिर मैं नोटबुक ले गई, बापूजी को दिया, इसमें तेरे बाप का हाथ लगता है। बापूजी ने कहा, एक उनका काम था, उनके लिए करना बहुत अच्छा लगता था। एक ही बात कहते थे, देख तेरे में, तुझे बहुत भाग्य है, तेरी माँ तमिल की है, मेरी माँ तमिल भाषी थी, पिताजी गुजराती थे। आजकल तो होता है, लेकिन हम गांधी के उस जमाने की बात कर रहे हैं, उस समय उस उम्र में इतने लोग नहीं थे। माँ तमिल, पिताजी गुजराती, और हम हिंदी में हुए, क्योंकि माँ बाप के आपस की भाषा हिंदी थी। क्योंकि पिताजी को गांधी ने भेजा था दक्षिण इंडिया, भारत, हिंदी प्रचार के लिए, प्रचार सभा भेजा था। तो वहाँ पे पिताजी की मुलाकात राजगोपालाचार्य से हुई, और उनकी छोटी बेटी से उनका प्रेम हुआ। तो उससे उन दोनों का विवाह का हुआ, और वो प्रेम विवाह कहलाता था। तो मैंने अपनी माँ से एक बार पूछा, तुम्हारा प्रेम विवाह कहते? प्रेम विवाह क्यों कहती हो? कि जिनका प्रेम, जिनको अरेंज मैरिज, क्या उसमें प्रेम नहीं होता? खैर वो दूसरी बात है। लेकिन मैं उतनी सारी भाषाएं बोलते थे, लेकिन हम हिंदी बोलते थे। तो बापूजी मुझे कहते थे, तारा तुम तमिल अच्छी तरह से सीखो, तुम्हारा बाप तो गुजराती बोलता है, तुम हिंदी बोलती हो, तुम तमिल सीखो। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा, बापूजी पूछते मेरी मातृभाषा बताओ क्या है? उन्होंने कहा तुम्हारी मातृभाषा हिंदी कहो। मैंने कहा क्यों? क्योंकि हिंदी तुमने मेरे से ही तो सीखी है।
माँ से जो सीखी है वो मातृभाषा हो गई। तो अब मुझे अच्छा लगता है कहने में कि हिंदी मेरी मातृभाषा है, जितनी तमिल मेरी मातृभाषा है। उससे एक आराम भी हो गया। एक भाषा में गलती होती है तो कहती हूँ ये मेरी मातृभाषा नहीं है, तमिल मेरी तमिल में गलती हो गई तो कहती हूँ भाई मुझे तो गुजराती की आदत है। अब गुजराती ना बोलूं तो कहती हूँ भाई मेरी शादी बंगाली से हुई है तो बंगला ही बोलती हूँ। अब बापूजी होते तो बहुत खुश होते मैं इतनी भाषाएं बोलती हूँ। खैर, बापूजी के लिए कुछ करना बहुत अच्छा लगता था। भीड़ रहती थी उनके सामने। एक बात याद दिला दूं अशोक भाई, अभी हमसे बात हो रही थी कि वो आगा खां पैलेस से छूटने के बाद जहाँ उन्होंने जीवन संगिनी, जिंदगी की सबसे बड़ी, उन्होंने सत्याग्रही के साथ का संग से हटे, वो चली गई, चल बसी। महादेव काका, महादेव देसाई उनके जैसे बेटे जैसे थे, वो गुजर गए। वो जब आए, लेकिन उनमें एक जोश था। सब नेताओं को मैं बिल्कुल एकदम से उस उम्र में भी हताश देख रही थी। मैं बापूजी को कोई लीडर समझ के नहीं करती थी। ये मेरे दादा हैं, सब लोग उनके मानते हैं तो अच्छी बात है, मेरे तो दादा हैं। लेकिन एक ऐसा मुझे अनुभव हुआ, जीवन के 14 साल तक बापूजी का सानिध्य मिला, 12 साल तक बा का सानिध्य मिला। मैं कैसे, मुझे लगता है अद्भुत मैंने उसको साधारणता में दिया। तो उसे मैं कहूँगी असाधारण युग के साधारण दिन को मैंने साधारणता से ही जिया। लेकिन बापूजी के साथ तो एक अद्भुत लगता रहता था, उत्साह था। नेहरू आते थे दुखी, बापूजी उनको हंसा के भेजते थे। सोहरावर्दी साहब आते थे, बापूजी उनको दोस्त बना के छोड़ते। दुश्मन आता था वो दोस्त बन के जाता था। एक निर्भीकता थी, एक निर्भय। अब बच्चों, आप लोग कहेंगे कि आतंकी भी निर्भीक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनको देख के हमें भय लगता है। गांधी की निर्भीकता से भय लुप्त हो जाता है। वो हालांकि अलग विचार के कोई जाते थे और बापूजी के कमरे से निकल के वो दोस्त बन के निकलते थे। तो बापूजी के साथ एक अजीब चीज की थी, मैंने देखा उसी समय कितने लोग आते थे जाते थे, बापूजी ने सब में एक हौसला दिया, हौसला दिया। रोज प्रार्थना के बाद बापूजी जो बोलते, जो अपने मुसलमान भाई की वो जो कहा, बहुत ही आपने एक मार्मिक कथा सुनाई, जो उन्होंने कहा कि हमारा हिंदू धर्म बचेगा नहीं, उधर आप सही कह रहे हैं, मानव धर्म नहीं बचेगा। बापूजी ने ये अर्थ में कहा होगा। इसको हमें उसकी विशालता में समझना चाहिए धर्म को। आज इतने कंप्यूटर हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन इंसान अकेला पड़ गया है क्योंकि हमें किसी पे विश्वास नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। मेरा टेलीफोन न खो जाए, बेशक मेरे दोस्त मुझे याद न करें। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं आप लोगों की नहीं कह रही हूँ, ये मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मेरे जैसी 85 साल की औरत को ये हुआ हो तो आप लोगों को क्यों नहीं होगा। टेलीफोन मेरा कहीं न खो जाए, टेलीफोन मैं कहाँ गई, टेलीफोन है कि नहीं, तो इसीलिए मैं रखा हुआ, टेलीफोन बंद भी नहीं किया, अभी कर दूंगी शायद। उस समय आपको एक, अशोक भाई आप मानेंगे, आप तो उम्र में छोटी हैं, वो जमाना क्रांति का कैसे चला था आपको मालूम है? उसका आधार क्या था? अशोक भाई मैं क्या कहने जा रही हूँ, वो था लाल पोस्ट बॉक्स, जिसमें पोस्ट कार्ड्स में खत लिखे जाते थे, उस पोस्ट बॉक्स में डलते थे और दुनिया के 1000 कोने में पहुंच जाता था वो पोस्ट बॉक्स। अगर क्रांति का कोई राजदान था, सब राजदान है ना, राजदान था, कोई साक्षी था तो पोस्ट बॉक्स था। आप सब विचारों को उधर डाल दीजिए, फटे कागज में कुछ लिख के दीजिए, फौरन जाएगा, दूर दराज गांव में जाएगा, विश्व के हर कोने में जाएगा, आपके पास उसका जवाब आ जाएगा कुछ दिनों। आज हम कंप्यूटर में भी इतना नहीं पहुंच सकते जितना उधर से पहुंचते थे। कि बापूजी की जो मानस की दौड़ थी, मानस की दौड़ के गति के सामने कंप्यूटर कुछ नहीं। हमारी गति इतनी है कि आज मुझे अगर प्रधानमंत्री को या मेरे जैसे व्यक्ति को भी कोई एक चीज, आपको अगर कुछ इनॉग्रेशन करना हो तो अब नॉर्थ पोल में एक बटन दबा के यहाँ से कर सकती हैं। ये बात अलग है कि नॉर्थ पोल जाना हो तो वो चांस ज्यादा लेंगी बल्कि यहाँ से बटन बजाने का, लेकिन आप बटन दबा के पहुंच सकती हैं। लेकिन उस समय सब पोस्ट कार्ड में, बापूजी पत्र लेखन में उनका बहुत वो था कि पत्र लिखना चाहिए, हर एक को पत्र, डायरी लिखनी चाहिए। आपको वो मुस्लिम का जो मिला बहन का नोआखाली में, मुझे ये पूछना है वो आबा भाभी की डायरी से मिला कि किसी मनु बहन की डायरी से मिला? ये
ज्ञानेंद्र पांडे जो इतिहासकार हैं, हम्म, उन्होंने उस समय मुसलमानों की जो दशा थी उस पर एक बड़ा निबंध हम्म, एक व्याख्यान दिया था। उसमें उन्होंने ये कोट किया था। अच्छा, उनको ये डायरियां मिली हैं कहीं, वो शायद नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में है। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने 1 लाख से अधिक पोस्ट कार्ड लिखे। जिन लोगों को अपनी खराब हस्तलिपि पर पछतावा होता रहता ये मैं है, आपको बताऊंगी अभी। हाँ, वो गांधी जी की जरा हस्तलिपि देखें, वो खराब थी उस मानी में कि वाह सुदर्शन लेख नहीं लिखे। हिंदी में एक बड़ा विवाद चला एक उपन्यास को लेकर, एक कहानी संग्रह को लेकर, कि वो अश्लील है। फैसला कौन करे अश्लील है कि नहीं है? वो पुस्तक गांधी जी को भेजी। बड़े प्रसिद्ध गांधीवादी थे बनारसी दास चतुर्वेदी, उन्होंने वो भेजी। अब सोचिए, जो आदमी संसार के सबसे बड़े साम्राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का नेता है, उसके पास ये वक्त था कि वो उपन्यास पढ़, वो पुस्तक पढ़ गए और उन्होंने एक पोस्ट कार्ड लिखा, प्रिय बनारसी दास, मैं पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास पढ़ गया, इसमें अश्लील कुछ भी नहीं है, बापू के आशीर्वाद। इतना बड़ा अभियान चल रहा था, उस लेकर वो ध्वस्त हो। तो गांधी जी ने हर पत्र का उत्तर दिया है, ऐसा माना जाता है। कोई पत्र ऐसा नहीं गया उनको जिसका उत्तर उन्होंने न दिया। कहते हैं कि एक बार लियो टॉल्स्टॉय या किसी ने एम.के. गांधी इंडिया कर पत्र भेज दिया और वो पत्र गांधी जी को जाया गया। तो उस समय महिमा भी थी पोस्टल पोस्टल सर्विस। सिस्टम की, ये मैं कहूँगी, ये महिमा गांधी से अधिक पोस्टल सिस्टम की थी। लेकिन इस बात पे मैं कहते हुए मुझे थोड़ी वो हो रही है कि मैं जल्दी से बताऊं, आपको भूल जाती हूँ। अशोक भाई, आपने मेरी दुखती रगों पे हाथ दिया है। गांधी का सुदर्शन लेखन पर जो विचार होता था लेकिन मैं उसमें ये कहती हूँ कि मेरा कोई सुदर्शन से लेखन से कोई मेरा दावा नहीं था, ना अभी है, अब तो और भी बिगड़ गया। और अब मेरे लेखन के सामने बापूजी तो बहुत ही सुदर्शित है उनका। एक मैंने बापूजी का एक पत्र आया मुझे बापूजी को हर कोई लिख सकता था। बापूजी आगा खां पैलेस में थे, बात है, मुझे लगा बापूजी को जल्दी से चिट्ठी लिखूं। मैंने कागज का टुकड़ा लिया और मैंने बापूजी को कुछ लिखा, जल्दी से मोड़ा और कोनॉट सर्कस में, वो जो टेलीग्राफ ऑफिस आजकल बंद हो गया है, वहां गई, ईस्टर्न कोर्ट कहलाता था, वहां पोस्ट किया और एक डब्बे में डाला कि दिया मुझे याद नहीं, और बापूजी को पहुंच गया। वक्त अनुसार रेल में गया होगा, रेल में वापस आया होगा, अब दिन गिन लीजिए, 4 5 6 रोज में जवाब आ गया। मेरे सामने मेरी पड़ोस की सहेलियां मेरे पास बैठी थी। मैंने कहा बापूजी की चिट्ठी आई, बता बता। मैंने कहा नहीं, पहले मैं पढ़ लूंगी। अच्छा हुआ मैंने पढ़ा। मैंने खोला, प्रिय चिरंजीवी तारा, तेरा पत्र मिला, कहना होगा बहुत बुरा पत्र था। अपना लेखन सुधारो, पत्र लिखना सीखो, मुझे लिखते रहो। अब पत्राचार मेरे द्वारा तो बंद ही हो गया। मेरे तो बेवकूफ़ी की हद देखिए। अब डायरी में जिन्होंने लिखा बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने तो उसका सब कुछ किया है। आजकल जो डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रही हूँ, मैंने तो पूरा हमारे देश की परंपरा को निभाया कि कोई डॉक्यूमेंटेशन रखो ही मत। मैंने वो खत फाड़ दिया। मैंने कहा ये रखूंगी नहीं। आज मेरे पास होता तो मेरे बच्चे पता नहीं उसका मजाक करते भाई, लेकिन बच्चों का तो नहीं, वो नहीं करते, लेकिन पता नहीं कहीं वो चला जाता, ऑक्शन में बिक जाता। लेकिन उसका मुझे उस समय तो बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने बापूजी के साथ पत्राचार बंद कर दिया। बापूजी लेकिन बापूजी ने दोहराया नहीं। वो वाल्मीकि आश्रम की बात कर रहे हैं हम, तो वहां से 1 मिनट पहले, उसके बाद पहले जाती हूँ आगा खां पैलेस में। बाबा और बापूजी दोनों बीमार थे बहुत दिनों तक। तब जब जाना होता था वो भी एक पोस्ट कार्ड जैसे ही होता था। पोस्ट कार्ड में बात होती थी, अधिकतर कागज और लिफाफे में भी होती, लेकिन पोस्ट कार्ड में अधिक होती।
तो ट्रेन की पहले बुकिंग कराओ, सेकंड क्लास थर्ड क्लास की कंपार्टमेंट करो, अपने साथ बर्तन ले जाओ क्योंकि सराय में रहेंगे हम, मेरी माँ वहाँ खाना बनाएंगी, फिर हम टांगा लेंगे, फिर जाके पुलिस के जो सुपरिंटेंडेंट या क्या कहलाते हैं उधर जाएंगे, हमारी गाड़ी रुकी रहेगी, वो जेलर के पास जाएंगे पिताजी, हम गर्मी में भाई बहन, छोटा गोपाल कृष्ण तब पैदा नहीं हुआ था, रामचंद्र गांधी और राजमोहन गांधी थे, और हम लोग छोटे छोटे थे तो लड़ते रहते थे, अब 2 घंटे तक अप्पा अंदर रहते थे, फिर वो परमिशन लेके आते थे और कहते थे हाँ हम जा सकते हैं, और बापूजी और बा को देखने जब आगा खां पैलेस जाते थे, सीढ़ी में चढ़ते हुए रोमांच होता था। वही मैंने अपनी बेटी सुकन्या को कई बार बताया, तो वो कह रही थी मैं अभी हाल में गई थी माँ, जो आगा खां पैलेस जाके जो मार्मिकता लगती है वो कहीं नहीं लगती। मैं जाती थी और हमें देख के बापूजी जो बैठे हुए थे ऐसे गाते रहते थे या लिखते रहते थे स्थिर, एक मुस्कान आ जाती थी, और बा लेटी रहती थी क्योंकि बहुत बहुत ही बीमार थी, वो तो लड़के पहुंची थी वहां पे, उनको जाना नहीं था, वो जब आई तो सुशीला बहन उनको जबरदस्ती ले गई, और बापूजी ने सीढ़ी पर आया आगा खां पैलेस को कहने, गुजराती में उन्होंने कहा कि तुम स्वयं आई हो कि तुझे पुलिस ने तुम्हें लाए? तो सुशीला बहन ने कहा इनको कुछ मत कहिए, ये स्वयं आई है बापूजी, आपके बिना नहीं रह सकेंगी, इनको अब कुछ मत कहिए। खैर वो आके लेटी थी, अंग्रेजों ने बहुत बार कहा भी इतनी बीमार है उनको छोड़ दो, उन्होंने कहा नहीं, जब मेरी सैकड़ों बहनें आज जेल में जिनके बारे में पता नहीं, तो आज मैं क्यों जाऊंगी आज। तो हम जाते थे, और आखिरी थे बापूजी के गुजरने, बा के गुजरने के कोई 2 हफ्ते पहले गई थी, तो बा ने, सुशीला नायर थी, डॉक्टर सुशीला नायर बहुत ही हमारी करीब की बहुत महान औरत थी, आज मैं कह भी सकती हूँ इतने बड़े सब आप लोगों के सामने कि उनको तो भारत रत्न मिलना ही चाहिए। खैर सुशीला और मनु भी थे, जाके तारा के लिए साड़ी ले आओ, मैंने उसके लिए रखी है। कुछ परिवार में नियम था कि बा अपनी पोतियों को साड़ी देती थी, बहुत सुंदर खादी की साड़ी बारीक जिसको डोरिया कहते हैं, उसमें कढ़ा हुआ मेरे पास आया और मैं लेके भागी। क्यों भागी बताओ? मुझे लगा मैं जेल से भाग जाऊं। क्यों? विश्वास नहीं हो, बापूजी ने देख, क्योंकि मैंने कहा ये बापूजी मुझे कहेंगे ये तारा को मत दो, ये गरीबों को दो, जरूरतमंदों को दे दो। ये दिमाग में घुसा हुआ था कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है, आज तक भी वो फीलिंग आ रही है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जब साड़ी बापूजी को देखा, बापूजी ने कहा लो। क्यों बताइए, उसका सांकेतिकता क्या है अशोक भाई? उस समय जरूरतमंद मैं थी, बा जरूरतमंद थी देने के लिए, मैं जरूरतमंद थी पोती के हिसाब से लेने के लिए। और वो साड़ी लेके बापूजी कहा बहुत अच्छा। फिर मैं इतनी खुश थी, मैंने बा से कहा बा वो इतना बड़ा हॉल था, मैंने कहा बा मैं वहां जाके खेलूं? बा ने लेटे हुए कहा नहीं बेटा वहां नहीं जाना चाहिए, नहीं बच्चों वहां नहीं जाना चाहिए, वहां, मैंने कहा वहां पहरेदार कोई नहीं है, कोई गार्ड नहीं है। मैंने कहा देखो पहरेदार हो न हो, जो हमें करना हमारे लिए मना है उसे नहीं करना, उसे नहीं करो। तो सुशीला तारा के लिए मिठाई ले आओ, मोहन के लिए मिठाई ले आओ, देवदास को कुछ दो, लक्ष्मी को कुछ पूछो, मेरी माँ। फिर मैंने सीखा स्वराज का सही अर्थ, सेल्फ पर कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल डज नॉट मीन दैट यू नीड गार्ड्स टू लुक आफ्टर यू, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आज मैं चाहती हूँ कि बहुत आवश्यक है, मालविका जी आपने मुझे ये सुयोग दिया बच्चों से बात करने का, कि हमारे भविष्य की कुंजी, स्वस्थ भविष्य की कुंजी युवाओं के हाथ में है। अब आप लोगों का नारा होना चाहिए हम होंगे जिम्मेदार। अब आप लोगों को जवाबदेही रखनी है स्वच्छता के बारे में, हिंसा विहीन मानस के लिए। गार्ड हो ना, गार्ड की क्या जरूरत है? वो जमाना था आप मानेंगे जैसे पोस्ट बॉक्स चलता था, तब कहीं गार्ड नहीं थे। अब हम आ जाते हैं बापूजी के पास वाल्मीकि आश्रम में, उसके बाद नोआखाली भी गए, उसके बाद आए तब बिरला हाउस ठहरे थे जो गांधी स्मृति कहलाता है, और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बिरला हाउस मंदिर कहते हैं। उसमें इतनी गलती भी नहीं है कि आखिर बिरलाओं ने बनाया वो, तो वो उनके बनाने वाले का नाम है। लक्ष्मी नारायण हमें कैसे मिले, आखिर बनाया जिन्होंने उनके नाम से, और वो उद्घाटन बापूजी ने किया था उसका। तो उस समय वो जो बिरला हाउस था उसमें हम बापूजी ठहरे थे। लेकिन वो मैं बात कुछ कहते कहते उधर से उधर हो गई हूँ। लेकिन उस समय जो वाल्मीकि आश्रम में जो एक एक्सपीरियंस था, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जो गार्ड्स बिल्कुल नहीं होते थे उस समय, आए इंग्लैंड से, ये आपने पढ़ा होगा, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। वो मिशन था, कोई किस चीज का मिशन था मुझे पता नहीं, पाकिस्तान होगा कि नहीं, खैर
वो सर स्टैफर्ड क्रिप्स आए तो बहुत भीड़ चली, सब लोग बापूजी दौड़ रहे थे प्रार्थना स्थल पे। उनको ये था, टाइम देखते थे, प्रार्थना का टाइम हो गया, सामूहिक प्रार्थना सायंकाल की। सवेरे उनकी एकांत प्रार्थना होती थी, फिर दिन में 4-5 बार होती थी, और सायंकाल प्रार्थना लोगों के बीच में, चलो चलो प्रार्थना का वक्त है। अब सर स्टैफर्ड क्रिप्स भीड़ चीरते हुए आए और बापूजी प्रार्थना जाते हुए रुके। उन्होंने, मैं पास में खड़ी थी, उन्होंने मुझे मेरा परिचय दिया। मीट माय, दिस इज माय ग्रैंड डॉटर, द डॉटर ऑफ द डॉटर, बिकॉज आई एम द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, मीट द डॉटर ऑफ माय यंगेस्ट सन। ही शुक हैंड्स। मुझे तो इतना अच्छा लगा मालविका जी कि मैं गोरे से आदमी से हाथ मिला रही हूँ। फिर मैंने कहा कि अब क्या कहूँ, अंग्रेजी बोलने का भी मौका आ गया। हाउ डू यू डू का मैंने कहा चलो आज सब कुछ कर लो। मैंने कहा, ओ आई वॉज नॉट वेल yesterday, आई हैड फीवर, माई मदर gave me an aspirin, then fever was less, then we called the doctor. The doctor said I should not go to school, maybe tomorrow I will go to school, but I'm feeling better. बापूजी से सहा नहीं गया। बापूजी मुझे उस भीड़ के बीच में अलग ले गए। तारा, अंग्रेजी में जब हाउ डू डू कहते हैं, जवाब में सिर्फ हाउ डू डू कहो, उन्हें तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं सुनना। लेकिन अशोक भाई, मैं रोई, मालविका जी मैं रोई। क्यों? एक तो अंग्रेज के सामने मेरी अंग्रेजी गलत बोल गई, दूसरा अंग्रेजी में गलती कर गई, तीसरा बापूजी मुझे ऐसा कह रहे हैं, और वो बापूजी जो हर एक से हर पत्र में पहला पंक्ति उनके स्वास्थ्य के बारे में कहते थे। मैंने अपनी माँ से कहा, मेरी माँ ने कहा कोई बात नहीं है, उन्होंने सही कहा। मैंने कहा न ये भाषा सीखनी है, न ये संस्कृति सीखनी है, मुझे पूछ रहे हो कैसे हो, और मैं ये भी नहीं कह सकती मैं कैसी हूँ। लेकिन बापूजी हर एक को स्वास्थ्य के बारे में पूछते थे, स्वास्थ्य के पहले होते थे। मालविका जी, अगर आज आपको बापूजी पत्र लिखते तो कहते कि तुमने भोजन में क्या खाया, तुम्हें ये खाना चाहिए। अशोक भाई, तुमने अपने भोजन में कुछ परिवर्तन किया है कि तुम वही चीज़ें चटपटी खा रही हो। तो वो बापूजी का एक था कि हर एक को, लाला लाजपत राय को पहले स्वास्थ्य के बारे में, कि देखो हमारे पास वह नहीं है इतना धन कि हम लोग बड़े बड़े क्रूज में जाएं, मेडिटेरेनियन का चक्कर लगाएं, लेकिन तुम मानसिक स्तर पे इमेजिन करो कि तुम छुट्टी ले रहे हो और एक आध्यात्मिक रिसर्च करो, आध्यात्मिक छुट्टी लो। टॉल्स्टॉय को हेल्थ के बारे में, पंडित नेहरू जेल में थे बेचारे, हमेशा हेल्थ के बारे में सुनते थे, सरदार पटेल से हेल्थ के बारे में। तो उस बापूजी को मैंने सुना कि हेल्थ के बारे में मत बोलो, ये पता नहीं कैसी सभ्यता आ गई। खैर, एक वो बात थी। जो नारायण देसाई, महादेव देसाई के बेटे सुनाते थे कि गांधी जी के साथ महादेव देसाई और वो भी, उनकी उम्र 6-7 साल की थी, शिमला गए। उन दिनों गर्मियों में शिमला हो जाती थी राजधानी देश की। तो वाइसरॉय को कुछ नए प्रस्ताव गांधी जी ने दिए। वो वाइसरॉय ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन मुझे इनको लंदन भेजना होगा और वहां से जवाब जब आएगा तब मैं बता सकूंगा कि क्या करना है। 5-6 दिन लगेंगे। गांधी जी ने कहा ठीक है। अब नारायण देसाई बच्चे थे, ये बड़े उत्साहित हुए, अब तो शिमला में 5-6 दिन गुलछर्रे उड़ाएंगे, बहुत ही बढ़िया हो गया। लौटे, गांधी जी ने कहा सामान बांधो, वापस वर्धा जाएंगे। अरे भौचक, अब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वहां वो एक कोढ़ के रोगी थे ना, नाम था, क्या नाम, कोई कोढ़ के रोगी थे। तस्वीर भी एक है, एक तस्वीर भी है, फोटो भी है शायद उनका। कोढ़ के रोगी की सेवा गांधी जी कर रहे। उनको लगा कि 5 दिन का अगर उसमें नागा हो गया तो उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। उनका नहीं, मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ। तो ये सब लोग बेचारे वापस वर्धा गए और फिर नारायण देसाई कहने लगे कि हम लोग फिर शिमला वापस नहीं आए, अब आप ही जाइए, हम नहीं जाते। एक और कथा जो है बहुत दिलचस्प है। जब नमक सत्याग्रह में गांधी जी चले तो एक गांव पहुंचे, अंधेरा हो रहा था।
और एक नदी थी जिसको पार करके अगले गांव जाया जा सकता। वो नदी उथली थी, तो उसमें नाव नहीं चल सकती, कीचड़ भरी थी, उसमें पैदल भी नहीं जाया जा सकता था। तो ये तय हुआ कि आधी रात को द्वार से कुछ पानी आ जाएगा नदी में। अब गांधी जी और सत्याग्रही नाव में नदी पार कर, गांधी जी ने तो अपनी जेब से निकाली घड़ी, देखा और एक सी झोपड़ी में जाके सो गए। अब ये जो बेचारे अपढ़ गरीब देहाती थे, इनको ये चिंता सताना शुरू हुई, अंधेरी रात है, ये जोखिम कैसे उठाएं कि गांधी जी और 70-75 सत्याग्रहियों को एक नाव में पार करने दें, कुछ हो गया तो रोशनी होनी चाहिए। बहरहाल किस्सा कोता ये, 12 बजे जब गांधी जी आए बाहर, ये देहाती लोग अपने हाथ में छोटे छोटे दिए लिए हुए खड़े, और ये खबर उस तरफ भी पहुंचा दी गई, तो 100-150 गांव देहाती वहां भी छोटे छोटे दिए लिए हुए खड़े। ऐसा लगता है जैसे कोई बाइबल या पुराण का प्रसंग हो, ये कभी हुआ होगा, इसी कल्पना हम नहीं कर सकते। 80 बरस पहले इस देश में हुआ था, और इसकी अगर आप व्याख्या करें तो 3 बातें निकल। उन देहातियों को ये पता था कि अगर अंग्रेज बहादुर को ये खबर लग गई हमने किसी तरह से गांधी की इस सत्याग्रह में मदद की है, तो हम पर कहर बरपा होगा। उनको पता था, वो पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब थे और देहाती थे, लेकिन उनमें इतनी चिंता थी आंदोलन के लिए, वो कुछ और तो नहीं कर सकते थे, उसमें जा नहीं सकते थे, उसमें भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन जो ये मतलब ये जो दीवाने लोग जोखिम उठा रहे थे, उनके रास्ते में थोड़ी देर के लिए कुछ रोशनी तो दे सकते थे। गांधी ने साधारण व्यक्ति में ये ऊर्जा भरी। हम इस भी हालत में हो, कितने ही गरीब हो, ही हमारे पास साधन न हो, हम हमेशा दूसरों की मदद कर सकते। ये एक ऐसा पाठ है, पर एक ऑस्ट्रेलियन हिस्टोरियन ने किताब ही लिखी है, 1000 लैम्प्स ऑन बोथ साइड्स। 80 बरस पहले इस देश में ये संभव था। हम बड़े चिकने चुपड़े लोग हैं, बहुत ही अच्छे महाविद्यालयों इत्यादि में पढ़ते हैं, हमारे सामने अगर ऐसा मामला दरपेश हो, हम तो भाग निकलते, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, कि हमारे बस का नहीं। तमाम लोग मारे जाते हैं दिल्ली में सिर्फ रोड रेज की वजह से, क्योंकि ये करीब मतलब ये लोग जो हैं वो तेज गाड़ी चलाने में अपना बड़ा भारी बहादुरी मानते हैं, और उनकी गवाही देने के कोई रुकता नहीं। वारदात की गवाह नहीं मिलते, क्योंकि हम में इतनी हिम्मत भी नहीं रह गई है कि हम जाके कह सके कि हाँ ये हमारे सामने हुआ था, इस आदमी ने इन 3 गरीबों को रौंदा। वहां वो गरीब थे जिनके रौंदे जाने की पक्की खतरी थी, इसके बावजूद उन्होंने जोखिम उठाया। ये था गांधी का जादू। 23 जनवरी उनकी हत्या के 7 दिन पहले प्रार्थना प्रवचन शुरू करते हैं। कहते हैं, मुझे बताया गया है आज सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उनका रास्ता मेरे रास्ते से अलग रहा, लेकिन उसमें देशभक्ति की कोई कमी नहीं। जानते हैं कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद हुआ, वो कांग्रेस छोड़ के चले गए वगैरह वगैरह। फिर गांधी जी आगे कहते हैं, उन्होंने जो आजाद हिंद फौज बनाई उसमें सिर्फ बंगाली नहीं थे, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं,
उसमें मुसलमान भी थे, औरतें भी थीं, क्रिस्तान भी थे, सिख भी। उनकी देशभक्ति में कोई कमी कभी नहीं थी। ये आदमी अपने विरोधी को मान देता और याद करता। सरदार पटेल गए ये कहने के बापू आपकी जान को खतरा है, और हमको प्रार्थना सभा में जो लोग आते हैं उनकी खाना तलाशी लेने की इजाजत दीजिए। गांधी जी ने इनकार कर दिया। उनका प्रार्थना सभा में जो आएगा उसकी खाना तलाशी, वो तो ईश्वर के दरबार में आ रहा है, उसकी खाना तलाशी कैसे? और वही खाना तलाशी न, हालांकि ये व्याख्या बाद में हुई है कि गृह मंत्री को पूछने क्यों जाना चाहिए था। आपको अगर लगता था कि कोई अंदेशा है तो जो सुरक्षा के लिए जरूरी था वो करना चाहिए था। वो भी विवादित हो गया। हाँ? वो भी अब विवादित हो रहा है। हाँ, वो भी अब विवादित हो रहा है। और बहरहाल इसको नहीं भूलना चाहिए, इस देश की आजादी के समय दो बड़ी राष्ट्रीय दुर्घटनाएं हुई। एक इस देश का विभाजन, दूसरा महात्मा गांधी की हत्या। और क्या कब हुई? वो प्रार्थना सभा में जा रहे, उनकी प्रार्थना सभा भी एक अद्भुत आविष्कार। आज भी सेवाग्राम में सुबह शाम प्रार्थना सभा होती है। गांधी जी नहीं है तो प्रार्थना सभा होती। इस प्रार्थना सभा में क्या होता है? उपनिषद, गीता से पाठ, कुरान से पाठ, बाइबल से पाठ, जैन ग्रंथों से पाठ, बौद्ध ग्रंथों से पाठ, बाइबल से पाठ, यहूदी मेरी अपनी ये अटकल है। गांधी जी ने मंदिर जाना बंद कर दिया था अपने जीवन के उत्तरकाल, वो मंदिर नहीं जाते, और सेवाग्राम में कोई मंदिर उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने एक अनूठा मंदिर प्रार्थना सभा के रूप में बनाया, जिसमें हर धर्म के लिए जगह, हर धर्म की प्रार्थना होती। इसी पर वो आपत्ति करता है एक मुसलमान, तुम यहां प्रार्थना कुरान से नहीं कर सकते। गांधी कहते हैं आपको ये बात कहने का हक जरूर है, आप कहें और आपत्ति करें, लेकिन मेरा हक भी कुरान पर उतना ही है जितना आपका। मैं अच्छा हिंदू हूं, अच्छा मुसलमान भी हूं, अच्छा ईसाई भी हूं, अच्छा सिख और अच्छा पारसी भी। और मेरा धर्म मुझे ये सिखाता है मुझे सब धर्मों का आदर करना। आखिरी वक्त तक गांधी इसका पालन करते हैं। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा समय जब सारी दुनिया में हिंसा का इतना आतंक था और सबसे बड़े राजनेता जो थे वो सब हिंसक, हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी। उस समय कोई सोच सकता था एक आदमी अहिंसा का प्रस्ताव करता है, हम बिना हिंसा के इस स्वतंत्रता संग्राम को जीतेंगे। इस पर जितना गर्व करना चाहिए उतना नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक बहुत हिंसक समय में रहने लगे। अब तो बातचीत में भी बहुत हिंसा है, टेलीविजन पे हिंसा है, फैशन में हिंसा है, मनोरंजन में हिंसा है, भाषा में हिंसा है, मीडिया में हिंसा है, और अब तो खेलकूद में भी हिंसा है। एक जमाने में अरे भारतीय तो इसलिए क्रिकेट नहीं जीतते कि उनके पास किलर इंस्टिंक्ट नहीं है, उसमें भी हिंसा है, मार डालो से। इसके बरक्स ये आदमी इस देश की हिंसक मानसिकता को पूरी तरह से परिवर्तित करने का एक जोखिम और खुद हिंसा का शिकार। तो ये आसान बात नहीं है, ये इतनी साधारण बात। महात्मा गांधी ने साधारण भारतीय को प्रतिष्ठा और गरिमा की, प्रतिष्ठा और गरिमा जो संभवतः एक जमाने में बुद्ध ने दी। बुद्ध और महात्मा गांधी के बीच
कोई और ऐसा नहीं है जिसने साधारण को इतनी शक्ति दी हो, इतनी महिमा दी हो, इतनी गरिमा दी। साधारण से साधारण व्यक्ति इस दुनिया को बदल ये आत्मविश्वास पैदा कर। कौन सोच सकता था 1930 में जब महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह पर निकले थे, संभवतः उनको भी ये विश्वास नहीं रहा होगा कि 17 साल में अंग्रेज भाग खड़ा होगा। तो 17 साल लगे और जो अंत हुआ ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में, वो सिर्फ भारत में अंत नहीं हुआ, वो ब्रिटिश साम्राज्य मात्र का अंत हो गया। बचा नहीं। इस देश में कभी सूरज डूबता नहीं था, उसमें अब कहीं उगता नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इनका तो मौसम है तो हमेशा ही बदलाया रहता है, तो उसमें सूर्य उदय तो होता नहीं कभी। तो अब जहां सूर्यास्त, कभी सूर्यास्त नहीं होता था, वहां सूर्योदय नहीं होता। इतना बड़ा काम एक अधनंगे फकीर ने किया था, जिसको विंस्टन चर्चिल ने कहा था ना, वो दैट हाफ नेकेड फकीर। एक किस्सा सुना कि क्योंकि वो दिलचस्प है। गांधी जी मिलने गए बकिंघम पैलेस ब्रिटिश सम्राट से। प्रथा ये थी, जब कोई राज्याध्यक्ष आता था तो बग्घी ठीक बीच तक जाके रुकती थी। राजा थोड़ी सीढ़ियां नीचे उतरता था, ये राज्याध्यक्ष थोड़ी सीढ़ियां ऊपर था और बीच में वो मिलता। लेकिन अगर कोई राज्याध्यक्ष न हो, क्योंकि गांधी जी नहीं थे, वो बग्घी पहले रुक जाती। वो बग्घी पहले रुक रही थी तो गांधी जी ने कहा नहीं नहीं चलो। गांधी जी का आतंक इतना था, वो बग्घी वाला बीच तक ले गया। उधर जब जॉर्ज खड़े हुए, वो अटबकाए, गांधी जी ऊपर उठे, नीचे आए। और किस्सा ये है कि जब वो लंच पर बैठे तो गांधी जी ने हाथ से खाना शुरू। जी बारेटला थे, लंदन में पढ़े थे, उनको आता था। उन्होंने तय किया। अब वो ब्रिटिश अच्छा था, वो हड़बड़ाया। उसने सोचा अगर मेरा अतिथि हाथ से खा रहा है तो मैं मेजबान अगर हाथ से नहीं खाऊंगा, भद्रता होगी। तो वो बेचारा भी हाथ से खाने। उसके पहले किसी ने पूछा गांधी जी से, वो तो वैसे ही अपना एक चादर ओढ़े नंगे गए थे, मिस्टर गांधी, डोंट यू थिंक यू आर नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड फॉर मीटिंग द एम्परर? He said, no, no, the emperor has enough on him for both of us. उसी मीटिंग में, उसी दौरान कहा गया कि मैनचेस्टर के जो मजदूर हैं वो आपके बहुत खिलाफ है और वहां किसी हालत में आपको नहीं जाना चाहिए, वो हिंसक होकर आप पर हमला कर सकते। जहां ये कहा गया वहां गांधी जी ने तय किया कि नहीं हम तो मैनचेस्टर जाएं। गए मैनचेस्टर और वहां अंग्रेज मजदूर जिनके मिलें बंद हो गई और गुस्से में गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। गांधी जी चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने कहा, फिर कहा किसी ने कि आप में हमारी want to deprive us of our bread and butter. I want your bread to be buttered on both sides. I want everybody else's bread to be. But would you like to have your butter soaked in the blood of Indian labor? That is what it means if we continue to import from you. वो जो पूरी भीड़ थी जो गांधी की जय जयकार करने, whole thing of hate. Once was asked, are you a Mahatma trying to indulge in politics? He said, no, no. I'm a politician trying hard to be a Mahatma. Who would be able to say? ने पूछा कि if all religions are raised to the same God, why should we have so many religions? Religion should be enough.
Bapuji replied, all religions are true. They are all imperfect. He wrote biblical English. He is one of the best writers of English India has produced. He wrote biblical English. रविंद्रनाथ और उनके बीच आप पत्रव्यवहार, रविंद्रनाथ विक्टोरियन अंग्रेजी बहुत ही फ्लावरी, ये वो कर रहे हैं, उसका जवाब आपने जो नहीं एक बात कही अशोक भाई बहुत अच्छा बता रहे हैं, मैं तो 24 घंटे अशोक भाई को सुन सकती हूँ, लेकिन एक बात मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि बहुत आवश्यक है। आपने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा और अच्छी कहानियाँ सुनाई, लेकिन एक इम्प्रेशन मैं आप लोगों को नहीं देना चाहती या देना चाहती हूँ, एक इम्प्रेशन कि अंग्रेज़ों और हमारे बीच में बहुत दोस्ती थी, पारिवारिकता थी। कभी मैंने कहीं अपने परिवार में पढ़ते, हमारे परिवार में, गांधी युग के उस परिवार में, गांधी की दिल्ली में, कभी भी मैंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसा नहीं सुना। ये हमें याद करना चाहिए बच्चों कि यह एक मानसिक हिंसा भी नहीं थी कि हमें अंग्रेज़ लोग बुरे हैं। अंग्रेज़ी भाषा बोलते थे, अब तो वो हमारी भाषा हो गई है, लेकिन बापूजी अंग्रेज़ी भाषा इसलिए कहते थे हिंदी बोलो, गुजराती बोलो, अपनी भाषा बोलो, सब बोलो, अपनी भाषा को भूल के दूसरा न बोलो। लेकिन अंग्रेज़ों के साथ हमारा व्यवहार बहुत ही अच्छा था, ये याद रखो। दूसरी बात अशोक भाई आप जो कह रहे हैं तो बच्चों को याद दिलाना होगा, जैसे हमने पोस्ट बॉक्स की बात करी, उस समय का और आज का एक बहुत बड़ा, जो आपने सरदार पटेल का भी जिक्र किया, जो होम मिनिस्टर को किसी को रखना चाहिए, उससे मैं लिंक करके कह रही हूँ कि आज का एक सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा पॉपुलर नहीं कहना चाहिए, सबसे जाना माना चेहरा कौन सा है देश का? वो है बॉडीगार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड। वह अनामिक है, वह हमारे भय का प्रतीक है। अगर मेरा भय लुप्त हो जाता है तो उसकी नौकरी जाती है। गांधी के ज़माने में कोई बॉडीगार्ड्स नहीं थे। मुझे याद नहीं कि सरदार पटेल के साथ हम उनके घर में ऐसे ही जाते थे, हम उन्हें सरदार दादा कहते थे। वो हमारे दादा जैसे थे, काका जैसे थे, बड़े ताऊ जैसे थे। हम उनके यहाँ कभी हमने नहीं देखा। उनकी सबसे बड़ी चौकीदार थी उनकी बेटी मणिबहन पटेल, जिनसे डर के लोग अलग रहते थे। लेकिन उनके यहाँ कोई चौकीदार नहीं था। पंडित नेहरू के घर सीधे मेरे पिताजी गाड़ी ले जा, सीधे जब वो प्राइम मिनिस्टर भी बने, कोई बॉडीगार्ड नहीं होता था। वो ज़माने की बात है, वो ज़माना हमेशा हर तरह से अच्छा था, ऐसी बात मैं नहीं कह रही हूँ। जो विकास हुआ है उसकी आवश्यकता है, लेकिन सबसे बड़ा विकास मानसिक विकास है। जब हम अपनी भाषा का सदुपयोग करें, मतलब हमारे विचार ऐसे हों। बापूजी की भाषा में मैंने कभी नहीं सुना, याद रखो उस समय बॉडीगार्ड्स नहीं थे जैसे आज हैं, वही सबसे बड़ा जाना पहचाना और हमारी पदवी का जो प्रतीक है वो है बॉडीगार्ड। आपके पास बॉडीगार्ड नहीं है तो मतलब थोड़ा कम हो गया आपका, लेकिन बॉडीगार्ड जो होता वो नहीं होते थे, वो हमने बाद में जाना। और एक बात थी, उस ज़माने में ट्रैफिक जैम्स नहीं होते थे। आजकल मेरे एक घर की सहायक है नेपाल की, वो कह रही थी माँ आजकल आपने कब सुना ये ट्रैफिक जैम? तो मैं पिछले 25 साल से सुन रही हूँ। मैंने कहा मैं भी पिछले 70 साल से सुन रही हूँ। ट्रैफिक जैम बापूजी के ज़माने में नहीं होते थे। सिर्फ बापूजी की जब मृत्यु हुई, जब उनका खून हुआ, तब दिल्ली जैसे भर गई थी, वैसी भीड़ मैंने कहीं नहीं देखी। जब पंडित नेहरू ने अपना वो बहुत सुंदर बोला, बिरला हाउस की उस बैल्कनी से बोला, ये था तो बॉडीगार्ड नहीं थे। लेकिन बच्चों याद रखो, कहीं द्वेष नहीं था। अंग्रेज़ों के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध था। और वो जो उसमें गए, जब गांधी की बात करते हैं तो याद रखें, गांधी अकेले कुछ नहीं कर पाते। गांधी को कहना, याद रखना, मतलब उनकी पहले सहधर्मिणी कस्तूरबा की भी उतनी है, वो मातृशक्ति थी। बापूजी ने कहा सृष्टि में सबसे अधिक शक्ति है माँ की, वह पुरुष में है, महिला में है, बच्चों में, हर जीव में है वो मातृशक्ति। उस मातृशक्ति का इतना भी अंश अगर हम दूसरे व्यक्ति को दें तो हिंसा का स्थान नहीं होगा। बापूजी का मनोरंजन, बापूजी का हास्य, वो सब उनकी, उन्होंने सत्य की हर क्षेत्र में सत्य से उन्होंने एक संघर्ष किया। सत्य क्या है? आखिर में उनका भोजन, आपने जैसे कहा बकिंगम पैलेस में उन्होंने हाथ से खाया, ज़रूर खाया होगा, वो 1933 या 32 की बात होगी। लेकिन मुझे जब बापूजी को मैंने देखा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, रिफाइनमेंट को आप क्या कहेंगे हिंदी में? आप मजा हुआ कहें तो सुंदर नहीं लगता, परिष्कार भी,
और एक उसमें रिफाइनमेंट में एक आ जाता है, एक सौंदर्यता, शुद्धता। वो एक बापूजी में रिफाइनमेंट थी, वो लकड़ी के बोल में भिक्षु के जैसे, बुद्ध का भिक्षु जैसे हो वैसे लकड़ी के बोल में बापूजी बहुत अल्प आहार लेते थे। मैं अंतिम बापूजी के जीवन के अंतिम चरण की बात कर रही हूँ, जिसकी मैं साक्षी रही हूँ। लकड़ी के बोल में लेते थे, चम्मच से खाते थे। मैंने बापूजी को हाथ से खाते हुए कभी नहीं देखा। और उन्होंने कहा कि मैं जीवन में परिवर्तन करता रहता हूँ, कभी आपको किसी मेरे वाक्य से कोई दुविधा लगे तो मेरे अंतिम वाक्य को देखिए, क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूँ। और हमें याद रखना चाहिए वो एक मानस थे हमारे जैसे, और हर एक में बापूजी का, गांधी का अंश है। वो है, अगर हम गांधी की राह, जो गांधी की खोज है, बहुत बड़ी खोज है, उस ज़माने की खोज है, तो मैं एक ही बच्चों को बात बताऊंगी कि गांधी की खोज सबसे बड़ी अपने सत्य की खोज में ही आपको गांधी मिलेगा। गांधी की खोज में आप गांधी नहीं मिलेंगे। गांधी बहुत सूक्ष्म विचार है, एक सूक्ष्म दर्शन है, उसको आप ढूंढने जाएंगे आपको नहीं मिलेगा। वह आपके अंदर है, वह कस्तूर का गंध अंदर है। हिरण जो बावला फिरता रहता है जंगल में, वो स्वयं लिए रहता है। अपने आप अपने सत्य की राह में चलिए, गांधी स्वयं मिलेगा। मुझे गांधी के बारे में जो जिसे कहते हैं, एक, मैं स्कॉलर नहीं, स्कॉलर तो कोई बहुत दूर की बात है, मुझे इतना वो भी नहीं आता। आजकल मेरे पोते को, मेरा सुकन्या का बेटा है जो 27 साल का हो जाएगा, उसको बहुत इंटरेस्ट है। कहता है, माँ मैं आप तुम्हारी स्मृतियाँ लिखूंगा, मैं फिल्म बनाऊंगा। मैं थक जाती हूँ रोज़ गांधी की बात करते हुए, इसलिए मैं कहती हूँ कि अपना सत्य ढूंढो। अभी मेरे बेटे को भी बहुत इंटरेस्ट है। मेरी बहू रानी है, वो स्वीडन की हैं, और तो हमारी जो मेरी पोतियाँ हुई वो स्वीडन की भी हुई, वो स्वीडिश भी हो गया, बंगाली भी कुछ हो गई, गुजराती भी कुछ हो गई, मद्रासी भी कुछ हो गई। बापूजी को सुन के अच्छा ही लगता। तो ये सब बच्चों को मैं देखती हूँ, उनको देखती हूँ, तो तुम लोगों को देखती हूँ, उसमें जब उन्हीं की याद आ रही है। एक बहुत बड़ी खोज है तुम लोगों में, और आज हम माँ बाप का और अभिभावकों का, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही मार्गदर्शन दें, ताकि आप बनेंगे जिम्मेदार कल के लिए। और किसी का मेरा तो एक विचार और भी है कहते हुए, क्योंकि समय कम है, और मैं तो इनको बुलाने वाली हूँ अशोक भाई को अपने घर में, उनसे सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सी, हर विषय में उनके पास है बात, मैं सुनना चाहती हूँ। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि आप लोग अपने, जितना युवाओं तक ये बात जाए कि आप होंगे जिम्मेदार कल के लिए। स्वच्छता का सही अर्थ, वैसे देखा जाए हम लोग विकास का भी हमने अर्थ सही नहीं समझा है। सिर्फ निर्माण से विकास नहीं होता, विकास हमारी सोच से, हमारे विचारों में होता है। याद रखिए, सही विकास होगा, सही स्वच्छता होगी, तभी गांधी के सपनों को हम साकार करेंगे। गांधी का सपना क्या है? जो आपकी सच्चाई का सपना है। और आज जो देश चल रहा है, जो समाज, विश्व समाज चल रहा है, वो क्योंकि गांधी जैसे काम करने वाले कई हैं अपने क्षेत्र में, जिनके बारे में न कभी लिखा जाएगा न कभी लिखा गया है, लेकिन समाज चल रहा है उसी मात्र शक्ति के कारण जो हर पुरुष में, हर स्त्री में, हर बच्चे में, हर जीव में है। तो मैं उसी चिंगारी को, उसी को मैं प्रणाम करती हूँ आप सबके साथ, कस्तूरबा को, मातृशक्ति को और गांधी को, आप सबके साथ, क्योंकि वह जो सत्य की खोज है उस सब में हम लोग साथ हैं। गांधी को ढूंढते हुए हम स्वयं को जब पहचानेंगे तब गांधी मिल जाएंगे। Thank you very much, Tara ji and Vajpayee ji, for coming to IILM and spending time with us. It was a pleasure to have you share your thoughts with our students, faculty members, and guests. We will end today by Bapu's favorite bhajan sung by the students of Banyan Tree School. उन्होंने उस समय मुसलमानों की जो दशा थी उस पर एक बड़ा निबंध एक व्याख्यान दिया था, उसमें उन्होंने ये कोट किया था। अच्छा। उनको ये डायरियाँ मिली हैं कहीं, वो शायद नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में हैं। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने 1 लाख से अधिक पोस्ट कार्ड लिखे। जिन लोगों को अपनी खराब हस्तलिपि पर
पछतावा होता रहता ये है। मैं आपको बताऊंगी अभी। हाँ। वो गांधी जी की जरा हस्तलिपि देखें, वो खराब थी उस मानी में कि वाह सुदर्शन लेख नहीं लिखते थे। हिंदी में एक बड़ा विवाद चला एक उपन्यास को लेकर, एक कहानी संग्रह को लेकर, कि वो अश्लील है। फैसला कौन करे अश्लील है कि नहीं है? वो पुस्तक गांधी जी को भेजी, और बड़े प्रसिद्ध गांधीवादी थे बनारसी दास चतुर्वेदी, उन्होंने वो भेजी। अब सोचिए, जो आदमी संसार के सबसे बड़े साम्राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का नेता है, उसके पास ये वक्त था कि वो उपन्यास पढ़, वो पुस्तक पढ़ गए, और उन्होंने एक पोस्टकार्ड लिखा, प्रिय बनारसी दास, मैं पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास पढ़ गया, इसमें अश्लील कुछ भी नहीं है, बापू के आशीर्वाद। इतना बड़ा अभियान चल रहा था, उसको लेकर वो ध्वस्त हो। वो गांधी जी ने हर पत्र का उत्तर दिया है, ऐसा माना जाता है। कोई पत्र ऐसा नहीं गया उनको जिसका उत्तर उन्होंने न दिया। कहते हैं कि एक बार लियो टॉल्स्टॉय या किसी ने एम.के. गांधी इंडिया कर पत्र भेज दिया, और वो पत्र गांधी जी को पहुंचाया गया। तो उस समय महिमा भी थी पोस्टल सर्विस सिस्टम की, ये मैं कहूँगी, ये महिमा गांधी से अधिक पोस्टल सिस्टम की थी। लेकिन इस बात पे मैं कहते हुए मुझे थोड़ी वो हो रही है कि मैं जल्दी से बताऊं, आपको भूल जाती हूँ। अशोक भाई, आपने मेरी दुखती रगों पे हाथ दिया है। गांधी का सुदर्शन लेखन पर जो विचार होता था लेकिन मैं उसमें ये कहती हूँ कि मेरा कोई सुदर्शन से लेखन से कोई मेरा दावा नहीं था, ना अभी है, अब तो और भी बिगड़ गया। और अब मेरे लेखन के सामने बापूजी तो बहुत ही सुदर्शित है उनका। मैंने बापूजी का एक पत्र आया मुझे बापूजी को हर कोई लिख सकता था। बापूजी आगा खां पैलेस में थे, बात है, मुझे लगा बापूजी को जल्दी से चिट्ठी लिखूं। मैंने कागज़ का टुकड़ा लिया और मैंने बापूजी को कुछ लिखा, जल्दी से मोड़ा, और कोनॉट सर्कस में वो जो टेलीग्राफ ऑफिस आजकल बंद हो गया है, वहाँ गई, ईस्टर्न कोर्ट कहलाता था, वहाँ पोस्ट किया और एक डब्बे में डाला कि दिया मुझे याद नहीं, और बापूजी को पहुँच गया। वक्त अनुसार रेल में गया होगा, रेल में वापस आया होगा, अब दिन गिन लीजिए, 4, 5, 6 रोज़ में जवाब आ गया। मेरे सामने मेरी पड़ोस की सहेलियाँ मेरे पास बैठी थी। मैंने कहा बापूजी की चिट्ठी आई, बता बता। मैंने कहा नहीं, पहले मैं पढ़ लूँगी। अच्छा वो मैंने पढ़ा, मैंने खोला, प्रिय चिरंजीवी तारा, तेरा पत्र मिला, कहना होगा बहुत बुरा पत्र था। अपना लेखन सुधारो, पत्र लिखना सीखो, मुझे लिखते रहो। अब पत्राचार मेरे द्वारा तो बंद ही हो गया। मेरे तो बेवकूफ़ी की हद देखिए। अब डायरी में जिन्होंने लिखा बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने तो उसका सब कुछ किया है। आजकल जो डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रही हूँ, मैंने तो पूरा हमारे देश की परंपरा को निभाया कि कोई डॉक्यूमेंटेशन रखो ही मत। मैंने वो खत फाड़ दिया, मैंने कहा ये रखूंगी नहीं। आज मेरे पास होता तो मेरे बच्चे पता नहीं उसका मजाक करते भाई, लेकिन बच्चों का तो नहीं, वो नहीं करते, लेकिन पता नहीं कहीं वो चला जाता, ऑक्शन में बिक जाता। लेकिन उसका मुझे उस समय तो बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने बापूजी के साथ पत्राचार बंद कर दिया। बापूजी लेकिन बापूजी ने दोहराया नहीं। वो वाल्मीकि आश्रम की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ से 1 मिनट पहले, उसके बाद पहले जाती हूँ आगा खां पैलेस में। और बापूजी दोनों बीमार थे बहुत दिनों तक। तब जो जाना होता था वो भी एक पोस्ट कार्ड जैसे ही होता था। पोस्ट कार्ड में बात होती थी, अधिकतर कागज़ और लिफाफे में भी होती थी, लेकिन पोस्ट कार्ड में अधिक होती। तो ट्रेन की पहले बुकिंग कराओ, 2nd क्लास 3rd क्लास की कंपार्टमेंट करो, अपने साथ बर्तन ले जाओ, क्योंकि सराय में रहेंगे हम, मेरी माँ वहाँ खाना बनाएंगी, फिर हम टांगा लेंगे, फिर जाके पुलिस के जो सुपरिंटेंडेंट या क्या कहलाते हैं उधर जाएंगे, हमारी गाड़ी रुकी रहेगी, वो जेलर के पास जाएंगे पिताजी। हम गर्मी में भाई बहन, छोटा गोपाल कृष्ण तब पैदा नहीं हुआ था, रामचंद्र गांधी और राजमोहन गांधी थे, और हम लोग छोटे छोटे थे तो लड़ते रहते थे। अब 2 घंटे तक अप्पा अंदर रहते थे, फिर वो परमिशन लेके आते थे और कहते थे
हाँ हम जा सकते हैं। और बापूजी और बा को देखने जब आगा खां पैलेस जाते थे, सीढ़ी में चढ़ते हुए रोमांच होता था। वही मैंने अपनी बेटी सुकन्या को कई बार बताया, तो वो कह रही थी मैं अभी हाल में गई थी, माँ जो आगा खां पैलेस जाके जो मार्मिकता लगती है वो कहीं नहीं लगती। मैं जाती थी और हमें देख के बापूजी जब बैठे हुए थे ऐसे गाते रहते थे या लिखते रहते थे स्थिर, एक मुस्कान आ जाती थी। और बा लेटी रहती थी क्योंकि बहुत बहुत ही बीमार थी, वो तो लड़के पहुंची थी वहाँ पे, उनको जाना नहीं था। वो जब आई तो सुशीला बहन उनको ज़बरदस्ती ले गई और बापूजी ने सीढ़ी पर आया आगा खां पैलेस को कहने, गुजराती में उन्होंने कहा कि तुम स्वयं आई हो कि तुझे पुलिस ने तुम्हें लाए। तो सुशीला बहन ने कहा इनको कुछ मत कहिए, ये स्वयं आई है बापूजी, आपके बिना नहीं रह सकेंगी, इनको अब कुछ मत कहिए। खैर वो आके लेटी थी। अंग्रेज़ों ने बहुत बार कहा भी इतनी बीमार है उनको छोड़ दो, उन्होंने कहा नहीं, जब मेरी सैकड़ों बहनें आज जेल में जिनके बारे में पता नहीं, तो आज मैं क्यों जाऊँगी यहाँ से। तो हम जाते थे और आखिरी थे बापूजी के गुजरने, बा के गुजरने के कोई 2 हफ्ते पहले गई थी। तो बा ने, सुशीला नायर थी, डॉक्टर सुशीला नायर बहुत ही हमारी करीब की बहुत महान औरत थी। आज मैं कह भी सकती हूँ इतने बड़े सब आप लोगों के सामने कि उनको तो भारत रत्न मिलना ही चाहिए। खैर सुशीला और मनु भी थे, जाके तारा के लिए साड़ी ले आओ, मैंने उसके लिए रखी है। कुछ परिवार में नियम था कि बा अपनी पोतियों को साड़ी देती थी, बहुत सुंदर खादी की साड़ी बारीक जिसको डोरिया कहते हैं, उसमें कढ़ा हुआ मेरे पास आया और मैं लेके भागी। क्यों भागी बताओ? मुझे लगा मैं जेल से भाग जाऊं। क्यों? विश्वास नहीं हो, बापूजी ने देख, क्योंकि मैंने कहा ये बापूजी मुझे कहेंगे ये तारा को मत दो, ये गरीबों को दो, ज़रूरतमंदों को दे दो। ये दिमाग में घुसा हुआ था कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आज तक भी वो फीलिंग आ रही है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जब साड़ी बापूजी को देखा, बापूजी ने कहा लो। क्यों बताइए, उसका सांकेतिकता क्या है अशोक भाई? उस समय ज़रूरतमंद मैं थी, बा ज़रूरतमंद थी देने के लिए, मैं ज़रूरतमंद थी पोती के हिसाब से लेने के लिए। और वो साड़ी लेके बापूजी कहा बहुत अच्छा। फिर मैं इतनी खुश थी, मैंने बा से कहा बा वो इतना बड़ा हॉल था, मैंने कहा बा मैं वहाँ जाके खेलूँ। बा ने लेटे हुए कहा नहीं बेटा वहाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं बच्चों वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ, मैंने कहा वहाँ पहरेदार कोई नहीं है, कोई गार्ड नहीं है। मैंने कहा देखो पहरेदार हो न हो, जो हमें करना हमारे लिए मना है उसे नहीं करना, उसे नहीं करो। तो सुशीला तारा के लिए मिठाई ले आओ, मोहन के लिए मिठाई ले आओ, देवदास को कुछ दो, लक्ष्मी को कुछ पूछो, मेरी माँ को। फिर तब मैंने सीखा स्वराज का सही अर्थ, सेल्फ पर कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल डज नॉट मीन दैट यू नीड गार्ड्स टू लुक आफ्टर यू, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आज मैं चाहती हूँ कि बहुत आवश्यक है, मालविका जी आपने मुझे ये सुयोग दिया बच्चों से बात करने का, कि हमारे भविष्य की कुंजी, स्वस्थ भविष्य की कुंजी युवाओं के हाथ में है। अब आप लोगों का नारा होना चाहिए हम होंगे जिम्मेदार। अब आप लोगों को जवाबदेही रखनी है स्वच्छता के बारे में, हिंसा विहीन मानस के लिए। गार्ड हो ना, गार्ड की क्या ज़रूरत है? वो ज़माना था आप मानेंगे जैसे पोस्ट बॉक्स चलता था, तब कहीं गार्ड नहीं थे। अब हम आ जाते हैं बापूजी के पास वाल्मीकि आश्रम में, उसके बाद नोआखाली भी गए, उसके बाद आए तब बिरला हाउस ठहरे थे जो गांधी स्मृति कहलाता है, और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बिरला हाउस मंदिर कहते हैं। उसमें इतनी गलती भी नहीं है कि आखिर बिरलाओं ने बनाया वो, तो वो उनके बनाने वाले का नाम है। लक्ष्मी नारायण हमें कैसे मिले, आखिर बनाया जिन्होंने उनके नाम से, और वो उद्घाटन बापूजी ने किया था उसका। तो उस समय वो जो बिरला हाउस था उसमें हम बापूजी ठहरे थे। लेकिन वो मैं बात कुछ कहते कहते उधर से उधर हो गई हूँ। लेकिन उस समय जो वाल्मीकि आश्रम में जो एक एक्सपीरियंस था, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जो गार्ड्स बिल्कुल नहीं होते थे उस समय, आए इंग्लैंड से, ये आपने पढ़ा होगा, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। वो मिशन था, कोई किस चीज़ का मिशन था मुझे पता नहीं, पाकिस्तान होगा कि नहीं। खैर वो सर स्टैफर्ड क्रिप्स आए तो बहुत भीड़ चली, सब लोग, बापूजी दौड़ रहे थे प्रार्थना स्थल पे। उनको ये था, टाइम देखते थे, प्रार्थना का टाइम हो गया, सामूहिक प्रार्थना सायंकाल की। सवेरे उनकी एकांत प्रार्थना होती थी, फिर दिन में 4-5 बार होती थी, और सायंकाल प्रार्थना लोगों के बीच में, चलो चलो प्रार्थना का वक्त है। अब सर स्टैफर्ड क्रिप्स भीड़ चीरते हुए आए और बापूजी प्रार्थना जाते हुए रुके। उन्होंने, मैं पास में खड़ी थी, उन्होंने मुझे मेरा परिचय दिया, this is my granddaughter, the daughter, because I am the only daughter of my
of my father, meet the daughter of my youngest son. He shook hands. मुझे तो इतना अच्छा लगा मालविका जी कि मैं गोरे से आदमी से हाथ मिला रही हूँ. फिर मैंने कहा कि अब क्या कहूँ, अंग्रेजी बोलने का भी मौका आ गया. हाउ डू यू डू का मैंने कहा चलो आज सब कुछ कर लो. मैंने कहा ओ आई वॉज नॉट वेल यस्टरडे, आई हैड फीवर. My mother gave me an aspirin, then fever was less, then we called the doctor. The doctor said I should not go to school, maybe tomorrow I will go to school, but I'm feeling better. बापूजी से सहा नहीं गया. बापूजी मुझे उस भीड़ के बीच में अलग ले गए. तारा, अंग्रेजी में जब हाउ डू डू कहते हैं तो जवाब में सिर्फ हाउ डू डू कहो, उन्हें तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं सुनना. लेकिन अशोक भाई मैं रोई, मालविका जी मैं रोई. क्यों? एक तो अंग्रेज के सामने मेरी अंग्रेजी गलत बोल गई, दूसरा अंग्रेजी में गलती कर गई, तीसरा बापूजी मुझे ऐसा कह रहे हैं. और वो बापूजी जो हर एक से हर पत्र में पहला पंक्ति उनके स्वास्थ्य के बारे में कहते थे. मैंने अपनी माँ से कहा, मेरी माँ ने कहा कोई बात नहीं है, उन्होंने सही कहा. मैंने कहा न ये भाषा सीखनी है न ये संस्कृति सीखनी है. मुझे पूछ रहे हो कैसे हो, और मैं ये भी नहीं कह सकती मैं कैसी हूँ. लेकिन बापूजी हर एक को स्वास्थ्य के बारे में पूछते थे, स्वास्थ्य के पहले होते थे. मालविका जी अगर आज आपको बापूजी पत्र लिखते तो कहते कि तुमने भोजन में क्या खाया, तुम्हें ये खाना चाहिए. अशोक भाई तुमने अपने भोजन में कुछ परिवर्तन किया है कि तुम वही चीज़ें चटपटी खा रही हो. तो वो बापूजी का एक था कि हर एक को, लाला लाजपत राय को पहले स्वास्थ्य के बारे में कि देखो हमारे पास वह नहीं है इतना धन कि हम लोग बड़े बड़े क्रूज़ में जाएं, मेडिटेरेनियन का चक्कर लगाएं, लेकिन तुम मानसिक स्तर पे इमेजिन करो कि तुम छुट्टी ले रहे हो और एक आध्यात्मिक रिसर्च करो, आध्यात्मिक छुट्टी लो. टॉलस्टॉय को हेल्थ के बारे में, पंडित नेहरू जेल में थे बेचारे, हमेशा हेल्थ के बारे में सुनते थे, सरदार पटेल से हेल्थ के बारे में. तो उस बापूजी को मैंने सुना कि हेल्थ के बारे में मत बोलो, ये पता नहीं कैसी सभ्यता आ गई. खैर एक वो बात थी. संग जो नारायण देसाई, महादेव देसाई के बेटे सुनाते थे कि गांधी जी के साथ महादेव देसाई और वो भी, उनकी उम्र 6-7 साल की थी, शिमला गए. इन दिनों गर्मियों में शिमला हो जाती थी राजधानी देश की. तो वाइसरॉय को कुछ नए प्रस्ताव गांधी जी ने दिए. वो वाइसरॉय ने कहा कि ये तो ठीक है लेकिन मुझे इनको लंदन भेजना होगा और वहाँ से जब आएगा तब मैं बता सकूंगा कि क्या करना है. 5-6 दिन लगेंगे. गांधी जी ने कहा ठीक है. अब नारायण देसाई बच्चे थे, ये बड़े उत्साहित हुए, अब तो शिमला में 5-6 दिन गुलछर्रे उड़ाएंगे, बहुत ही बढ़िया हो गया. लौटे, गांधी जी ने कहा सामान बांधो, वापस वर्धा जाएंगे. अरे भौचक, अब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वहाँ वो एक कोढ़ के रोगी थे ना, मराठी नाम था उनका, भूल गया नाम, कोई कोढ़ के रोगी थे. तस्वीर भी एक है ना, एक तस्वीर भी है, फोटो भी है शायद उनका. कोढ़ के रोगी की सेवा गांधी जी कर रहे. उनको लगा कि 5 दिन का अगर उसमें नागा हो गया तो उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी. उनका नहीं, मैं उसकी सेवा करने आना चाहता हूँ. तो ये सब लोग बेचारे वापस वर्धा गए और फिर नारायण देसाई कहने लगे कि हम लोग फिर शिमला वापस नहीं आए, आप ही जाइए, हम नहीं जाते. एक और कथा जो है बहुत दिलचस्प है. जब नमक सत्याग्रह में गांधी जी चले तो एक गांव पहुंचे, अंधेरा हो रहा था और एक नदी थी जिसको पार करके अगले गांव जाया जा सकता. वो नदी उथली थी तो उसमें नाव नहीं चल सकती, कीचड़ भरी थी, उसमें पैदल भी नहीं जाया जा सकता था. तो ये तय हुआ कि आधी रात को द्वार से कुछ पानी आ जाएगा नदी में. अब गांधी जी और सत्याग्रही नाव में नदी पार कर. गांधी जी ने तो अपनी जेब से निकाली घड़ी, देखा और एक सी झोपड़ी में जाके सो गए.
अब ये जो बेचारे अपढ़ गरीब देहाती थे, इनको ये चिंता सताना शुरू हुई, अंधेरी रात है, ये जोखिम कैसे उठाएं कि गांधी जी और 70-75 सत्याग्रहियों को एक नाव में पार करने दें। कुछ हो गया तो रोशनी होनी चाहिए। बहरहाल किस्सा कोता ये, 12 बजे जब गांधी जी आए बाहर, ये देहाती लोग अपने हाथ में छोटे छोटे दिए लिए हुए खड़े, और ये खबर उस तरफ भी पहुंचा दी गई, तो 100-150 गांव देहाती वहां भी छोटे छोटे दिए लिए हुए खड़े थे। ऐसा लगता है जैसे कोई बाइबल या पुराण का प्रसंग हो, ये कभी हुआ होगा इसी कल्पना हम नहीं कर सकते। 80 बरस पहले इस देश में हुआ था, और इसकी अगर आप व्याख्या करें तो 3 बातें निकल। उन देहातियों को ये पता था कि अगर अंग्रेज बहादुर को ये खबर लग गई हमने किसी तरह से गांधी की इस सत्याग्रह में मदद की है तो हम पर कहर बरपा होगा। उनको पता था, वो पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब थे और देहाती थे, लेकिन उनमें इतनी चिंता थी आंदोलन के लिए, वो कुछ और तो नहीं कर सकते थे, उसमें जा नहीं सकते थे, उसमें भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन जो ये ये जो दीवाने लोग जोखिम उठा रहे थे, उनके रास्ते में थोड़ी देर के लिए कुछ रोशनी तो दे सकते थे। गांधी ने साधारण व्यक्ति में ये ऊर्जा भरी। हम इस भी हालत में हो, कितने ही गरीब हों, कितने ही हमारे पास साधन न हो, हम हमेशा दूसरों की मदद कर सकते। ये एक ऐसा पाठ है, पर एक ऑस्ट्रेलियन हिस्टोरियन ने किताब ही लिखी है, 1000 लैम्प्स ऑन बोथ साइड्स। 80 बरस पहले इस देश में ये संभव था। हम बड़े चिकने चुपड़े लोग हैं, बहुत ही अच्छे महाविद्यालयों इत्यादि में पढ़ते हैं। हमारे सामने अगर ऐसा मामला दरपेश हो, हम तो भाग निकलते, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, ये हमारे बस का नहीं है। तमाम लोग मारे जाते हैं दिल्ली में सिर्फ रोड रेज की वजह से, क्योंकि ये करीब ये लोग जो हैं वो तेज गाड़ी चलाने में अपना बड़ा भारी बहादुरी मानते हैं, और उनकी गवाही देने के कोई रुकता नहीं। वारदात की गवाह नहीं मिलते, क्योंकि हम में इतनी हिम्मत भी नहीं रह गई है कि हम जाके कह सके कि हाँ ये हमारे सामने हुआ था, इस आदमी ने इन 3 गरीबों को रौंदा। वहां वो गरीब थे जिनके रौंदे जाने की पक्की खतरी थी, इसके बावजूद उन्होंने जोखिम उठाया। ये था गांधी का जादू। 23 जनवरी उनकी हत्या के 7 दिन पहले प्रार्थना प्रवचन शुरू करते हैं। कहते हैं, मुझे बताया गया है आज सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उनका रास्ता मेरे रास्ते से अलग रहा, लेकिन उसमें देशभक्ति की कोई कमी नहीं। जानते हैं कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद हुआ, वो कांग्रेस छोड़ के चले गए वगैरह वगैरह। फिर गांधी जी आगे कहते हैं, उन्होंने जो आजाद हिंद फौज बनाई उसमें सिर्फ बंगाली नहीं थे, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं थे, उसमें मुसलमान भी थे, औरतें भी थीं, क्रिस्तान भी थे, सिख भी। उनकी देशभक्ति में कोई कमी कभी नहीं थी। ये आदमी अपने विरोधी को भी मान देता और याद करता है। सरदार पटेल गए ये कहने के बापू आपकी जान को खतरा है, और हमको प्रार्थना सभा में जो लोग आते हैं उनकी खाना तलाशी लेने की इजाजत दीजिए।
गांधी जी ने इनकार कर दिया। उनका प्रार्थना सभा में जो आएगा उसकी खाना तलाशी नहीं। वो तो ईश्वर के दरबार में आ रहा, उसकी खाना तलाशी कैसे? और वही खाना तलाशी न, हालांकि ये व्याख्या बाद में हुई है, एक गृह मंत्री को पूछने क्यों जाना चाहिए था? वो दूसरी बात। आपको अगर लगता था कि कोई अंदेशा है तो जो सुरक्षा के लिए जरूरी था वो करना चाहिए था। वो भी विवादित हो गया अब। हाँ? वो भी अब विवादित हो रहा है। हाँ, वो भी अब विवादित हो रहा है। और बहरहाल इसको नहीं भूलना चाहिए, इस देश की आजादी के समय दो बड़ी राष्ट्रीय दुर्घटनाएं हुई। एक इस देश का विभाजन, दूसरा महात्मा गांधी की हत्या। और क्या कब हुई? वो प्रार्थना सभा में जा रहे, उनकी प्रार्थना सभा भी एक अद्भुत आविष्कार थी। आज भी सेवाग्राम में सही शब्द। सुबह शाम प्रार्थना सभा होती है। गांधी जी नहीं है तो प्रार्थना सभा होती है। इस प्रार्थना सभा में क्या होता है? उपनिषद, गीता से पाठ, कुरान से पाठ, बाइबल से पाठ, जैन ग्रंथों से पाठ, बौद्ध ग्रंथों से पाठ, बाइबल से पाठ, यहूदी, मेरी अपनी ये अटकल है। गांधी जी ने मंदिर जाना बंद कर दिया था अपने जीवन के उत्तरकाल, वो मंदिर नहीं जाते। और सेवाग्राम में कोई मंदिर उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने एक अनूठा मंदिर प्रार्थना सभा के रूप में बनाया, जिसमें हर धर्म के लिए जगह, हर धर्म की प्रार्थना होती। उसी पर वो आपत्ति करता है एक मुसलमान, तुम यहाँ प्रार्थना कुरान से नहीं कर सकते। गांधी कहते हैं आपको ये बात कहने का हक जरूर है, आप कहें और आपत्ति करें, लेकिन मेरा हक भी कुरान पर उतना ही है जितना आपका। मैं अच्छा हिंदू हूँ, अच्छा मुसलमान भी हूँ, अच्छा ईसाई भी हूँ, अच्छा सिख और अच्छा पारसी भी। और मेरा धर्म मुझे ये सिखाता है मुझे सब धर्मों का आदर करना। आखिरी वक्त तक गांधी इसका पालन करते हैं। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा समय जब सारी दुनिया में हिंसा का इतना आतंक था और सबसे बड़े राजनेता जो थे वो सब हिंसक थे, हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी। उस समय कोई सोच सकता था? एक आदमी अहिंसा का प्रस्ताव करता है, हम बिना हिंसा के इस स्वतंत्रता संग्राम को जीतेंगे। इस पर जितना गर्व करना चाहिए उतना नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक बहुत हिंसक समय में रहने लगे। अब तो बातचीत में भी बहुत हिंसा है, टेलीविजन पे हिंसा है, फैशन में हिंसा है, मनोरंजन में हिंसा है, भाषा में हिंसा है, मीडिया में हिंसा है, और अब तो खेलकूद में भी हिंसा है। एक जमाने का अरे भारतीय तो इसलिए क्रिकेट नहीं जीतते कि उनके पास किलर इंस्टिंक्ट नहीं है, उसमें भी हिंसा है, मार डालो से। इसके बरक्स ये आदमी इस देश की हिंसक मानसिकता को पूरी तरह से परिवर्तित करने का एक जोखिम उठाता और खुद हिंसा का शिकार होता। तो ये आसान बात नहीं है, ये इतनी साधारण बात नहीं। महात्मा गांधी ने साधारण भारतीय को प्रतिष्ठा और गरिमा दी, प्रतिष्ठा और गरिमा तो संभवतः एक जमाने में बुद्ध ने दी। बुद्ध और महात्मा गांधी के बीच कोई और ऐसा नहीं है जिसने साधारण को इतनी शक्ति दी हो, इतनी महिमा दी हो, इतनी गरिमा दी। साधारण से साधारण व्यक्ति इस दुनिया को बदल सकता, ये आत्मविश्वास पैदा कर। कौन सोच सकता था 1930 में जब महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह पर निकले थे, संभवतः उनको भी ये विश्वास नहीं रहा होगा कि 17 साल में अंग्रेज भाग खड़ा होगा। 17 साल लगे और जो
अंत हुआ ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में, वो सिर्फ भारत में अंत नहीं हुआ, वो ब्रिटिश साम्राज्य मात्र का अंत हो गया। अच्छा नहीं, जिस देश में कभी सूरज डूबता नहीं था उसमें अब कहीं उगता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनका जो मौसम है हमेशा ही बदलाया रहता है, तो उसमें सूर्य उदय तो होता नहीं कभी। तो अब जहाँ सूर्यास्त, कभी सूर्यास्त नहीं होता था, वहां सूर्योदय नहीं होता। इतना बड़ा काम एक अधनंगे फकीर ने किया था, जिसको विंस्टन चर्चिल ने कहा था ना, वो दैट हाफ नेकेड फकीर। एक किस्सा सुना कि, क्योंकि वो दिलचस्प है। गांधी जी मिलने गए बकिंघम पैलेस ब्रिटिश सम्राट से। प्रथा ये थी, जब कोई राज्याध्यक्ष आता था, बग्घी ठीक बीच तक जाके रुकती थी। राजा थोड़ी सीढ़ियां नीचे उतरता था, ये राज्याध्यक्ष थोड़ी सीढ़ियां ऊपर था, और बीच में वो मिलते। लेकिन अगर कोई राज्याध्यक्ष न हो, क्योंकि गांधी जी नहीं थे, वो बग्घी पहले रुक जाती। वो बग्घी पहले रुक रही थी, तो गांधी जी ने कहा नहीं नहीं चलो। गांधी जी का आतंक इतना था, वो बग्घी वाला बीच तक ले गया। उधर पंचम जॉर्ज खड़े हुए, वो अटबकाए, गांधी जी ऊपर उठे, वो नीचे आए। और किस्सा ये है कि जब वो लंच पर बैठे तो गांधी जी ने हाथ से खाना शुरू। जी बारेटला थे, लंदन में पढ़े थे, उनको ना आता था, लेकिन उन्होंने तय किया। अब वो ब्रिटिश बादशाह था, वो हड़बड़ाया। उसने सोचा अगर मेरा अतिथि हाथ से खा रहा है तो मैं मेजबान अगर हाथ से नहीं खाऊंगा, अभद्रता होगी। तो वो बेचारा भी हाथ से खाने लगा। उसके पहले किसी ने पूछा गांधी जी से, वो तो वैसे ही अपना एक चादर ओढ़े हुए नंगे गए थे, मिस्टर गांधी, डोंट यू थिंक यू नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड फॉर मीटिंग द एम्परर? He said, no, the emperor has enough on him for both of us. उसी मीटिंग में, उसी दौरान कहा गया कि मैनचेस्टर के जो मजदूर हैं वो आपके बहुत खिलाफ है और वहां किसी हालत में आपको नहीं जाना चाहिए, वो हिंसक होकर आप पर हमला कर सकते। जहां ये कहा गया वहां गांधी जी ने तय किया कि नहीं, हम तो मैनचेस्टर जाएंगे। अब गए मैनचेस्टर, और वहां अंग्रेज मजदूर जिनके मिलें बंद हो गई, बहुत गुस्से में और गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। गांधी जी चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, फिर कहा किसी ने कि आप में हमारी want to deprive us of our bread and butter. जी ने देना शुरू। I want your bread to be buttered on both sides. I want everybody else's bread to be buttered. But would you like to have your butter soaked in the blood of Indian labor? That is what it means if we continue to import from you. वो जो पूरी भीड़ थी जो गांधी की जय जयकार करने, whole thing got hey. Once was asked, are you a Mahatma trying to indulge in politics? He said, no, I'm a politician trying hard to be a Mahatma. Who would be able to say? ने पूछा कि if all religions are raised to the same God, why should we have so many religions? Religion should be enough. He replied, all religions are true. They are all imperfect. Gandhi ji wrote biblical English. He is one of the best writers of English India has produced. He wrote biblical English. रविंद्रनाथ और उनके बीच आप पत्रव्यवहार, रविंद्रनाथ विक्टोरियन अंग्रेजी बहुत ही फ्लावरी, ये वो कर रहे हैं। गांधी जी उसका जवाब बिल्कुल straight to the bone। अशोक भाई आपने जो नहीं एक बात कही, अशोक भाई बहुत अच्छा बता रहे हैं, मैं तो 24 घंटे अशोक भाई को सुन सकती हूँ।
लेकिन एक बात मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि बहुत आवश्यक है। आपने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा और अच्छी कहानियाँ सुनाई, लेकिन एक इम्प्रेशन मैं आप लोगों को नहीं देना चाहती, या देना चाहती हूँ एक इम्प्रेशन, कि अंग्रेज़ों और हमारे बीच में बहुत दोस्ती थी, पारिवारिकता थी। कभी मैंने कहीं अपने परिवार में पढ़ते, हमारे परिवार में, गांधी युग के उस परिवार में, गांधी की दिल्ली में, कभी भी मैंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसा नहीं सुना। ये हमें याद करना चाहिए बच्चों कि यह एक मानसिक हिंसा भी नहीं थी कि हमें अंग्रेज़ लोग बुरे हैं। अंग्रेज़ी भाषा बोलते थे, अब तो वो हमारी भाषा हो गई है, लेकिन बापूजी अंग्रेज़ी भाषा इसलिए कहते थे, हिंदी बोलो, गुजराती बोलो, अपनी भाषा बोलो, सब बोलो, अपनी भाषा को भूल के दूसरा न बोलो। लेकिन अंग्रेज़ों के साथ हमारा व्यवहार बहुत ही अच्छा था, ये याद रखो। दूसरी बात अशोक भाई, आप जो कह रहे हैं तो बच्चों को याद दिलाना होगा, जैसे हमने पोस्ट बॉक्स की बात करी, उस समय का और आज का एक बहुत बड़ा, जो आपने सरदार पटेल का भी जिक्र किया, जो होम मिनिस्टर को किसी को रखना चाहिए, उससे मैं लिंक करके कह रही हूँ कि आज का एक सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा पॉपुलर नहीं कहना चाहिए, सबसे जाना माना चेहरा कौन सा है देश का? वो है बॉडीगार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड। वह अनामिक है, वह हमारे भय का प्रतीक है। अगर मेरा भय लुप्त हो जाता है तो उसकी नौकरी जाती है। गांधी के ज़माने में कोई बॉडीगार्ड्स नहीं थे। मुझे याद नहीं कि सरदार पटेल के साथ हम उनके घर में ऐसे ही जाते थे, हम उन्हें सरदार दादा कहते थे। वो हमारे दादा जैसे थे, काका जैसे थे, बड़े ताऊ जैसे थे। हम उनके यहाँ कभी हमने नहीं देखा। उनकी सबसे बड़ी चौकीदार थी उनकी बेटी मणिबहन पटेल, जिनसे डर के लोग अलग रहते थे दूर से। लेकिन उनके यहाँ कोई चौकीदार नहीं था। पंडित नेहरू के घर सीधे मेरे पिताजी गाड़ी ले जा, सीधे जब वो प्राइम मिनिस्टर भी बने, कोई बॉडीगार्ड नहीं होता था। वो ज़माने की बात है, वो ज़माना हमेशा हर तरह से अच्छा था, ऐसी बात मैं नहीं कह रही हूँ। जो विकास हुआ है उसकी आवश्यकता है, लेकिन सबसे बड़ा विकास मानसिक विकास है। जब हम अपनी भाषा का सदुपयोग करें, मतलब हमारे विचार ऐसे हों। बापूजी की भाषा में मैंने कभी नहीं सुना, याद रखो उस समय बॉडीगार्ड्स नहीं थे जैसे आज हैं, वही सबसे बड़ा जाना पहचाना और हमारी पदवी का जो 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 प्रतीक है वो है बॉडीगार्ड। आपके पास बॉडीगार्ड नहीं है तो मतलब थोड़ा कम हो गया आपका, लेकिन बॉडीगार्ड जो होता वो नहीं होते थे, वो हमने बाद में जाना। और एक बात थी, उस ज़माने में ट्रैफिक जैम्स नहीं होते थे। आजकल मेरे एक घर की सहायक है नेपाल की, वो कह रही थी, माँ आजकल आपने कब सुना ये ट्रैफिक जैम? तो मैं पिछले 25 साल से सुन रही हूँ। मैंने कहा मैं भी पिछले 70 साल से सुन रही हूँ। ट्रैफिक जैम बापूजी के ज़माने में नहीं होते थे। सिर्फ बापूजी की जब मृत्यु हुई, जब उनका खून हुआ, तब दिल्ली जैसे भर गई थी, वैसी भीड़ मैंने कहीं नहीं देखी। जब पंडित नेहरू ने अपना वो बहुत सुंदर बोला, बिरला हाउस की उस बैल्कनी से बोला, ये था तो बॉडीगार्ड नहीं थे। लेकिन बच्चों याद रखो, कहीं द्वेष नहीं था। अंग्रेज़ों के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध था। और वो जो उसमें गए, जब गांधी की बात करते हैं तो याद रखें, गांधी अकेले कुछ नहीं कर पाते। गांधी को कहना, याद रखना, मतलब उनकी पहले सहधर्मिणी कस्तूरबा की भी उतनी है, वो मातृशक्ति थी। बापूजी ने कहा, सृष्टि में सबसे अधिक शक्ति है माँ की, वह पुरुष में है, महिला में है, बच्चों में, हर जीव में है वो मातृशक्ति। उस मातृशक्ति का इतना भी अंश अगर हम दूसरे व्यक्ति को दें तो हिंसा का स्थान नहीं होगा। बापूजी का मनोरंजन, बापूजी का हास्य, वो सब उन्होंने सत्य की हर क्षेत्र में सत्य से उन्होंने एक संघर्ष किया। सत्य क्या है? आखिर में उनका भोजन, आपने जैसे कहा बकिंगम पैलेस में उन्होंने हाथ से खाया, ज़रूर खाया होगा, वो 1933 या 32 की बात होगी। लेकिन मुझे जब बापूजी को मैंने देखा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, रिफाइनमेंट को आप क्या कहेंगे? हिंदी में आप मजा हुआ कहें तो सुंदर नहीं लगता, परिष्कार भी, और एक उसमें रिफाइनमेंट में एक आ जाता है एक सौंदर्यता, शुद्धता। वो एक बापूजी में रिफाइनमेंट थी, वो लकड़ी के बोल में भिक्षु के जैसे, बुद्ध का भिक्षु जैसे हो, वैसे लकड़ी के बोल में बापूजी बहुत अल्प आहार लेते थे। मैं अंतिम बापूजी के जीवन के अंतिम चरण की बात कर रही हूँ, जिसकी मैं साक्षी रही हूँ। लकड़ी के बोल में लेते थे, चम्मच से खाते थे। मैंने बापूजी को हाथ से खाते हो कभी नहीं देखा। और उन्होंने कहा
कि मैं जीवन में परिवर्तन करता रहता हूँ। कभी आपको किसी मेरे वाक्य से कोई दुविधा लगे तो मेरे अंतिम वाक्य को देखिए, क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूँ। और हमें याद रखना चाहिए वो एक मानस थे हमारे जैसे, और हर एक में बापूजी का, गांधी का अंश है। वो है, अगर हम गांधी की राह, जो गांधी की खोज है, बहुत बड़ी खोज है, उस ज़माने की खोज है, तो मैं एक ही बच्चों को बात बताऊंगी कि गांधी की खोज सबसे बड़ी अपने सत्य की खोज में ही आपको गांधी मिलेगा। गांधी की खोज में आप गांधी नहीं मिलेंगे। गांधी बहुत सूक्ष्म विचार है, एक सूक्ष्म दर्शन है, उसको आप ढूंढने जाएंगे आपको नहीं मिलेगा। वह आपके अंदर है, वह कस्तूर का गंध अंदर है। हिरण जो बावला फिरता रहता है जंगल में, वो स्वयं लिए रहता है। अपने आप अपने सत्य की राह में चलिए, गांधी स्वयं मिलेगा। मुझे गांधी के बारे में जो जैसे कहते हैं, एक मैं स्कॉलर नहीं, स्कॉलर तो कोई बहुत दूर की बात है, मुझे इतना वो भी नहीं आता। आजकल मेरे पोते को, मेरा सुकन्या का बेटा है जो 27 साल का हो जाएगा, उसको बहुत इंटरेस्ट है। कहता है माँ मैं आप तुम्हारी स्मृतियाँ लिखूंगा, मैं फिल्म बनाऊंगा। मैं थक जाती हूँ रोज़ गांधी की बात करते हुए, इसलिए मैं कहती हूँ कि अपना सत्य ढूंढो। अभी मेरे बेटे को भी बहुत इंटरेस्ट है। मेरी बहू रानी है, वो स्वीडन की हैं, और तो हमारी जो मेरी पोतियाँ हुई वो स्वीडन की भी हुई, वो स्वीडिश भी हो गया, बंगाली भी कुछ हो गई, गुजराती भी कुछ हो गई, मद्रासी भी कुछ हो गई। बापूजी को सुन के अच्छा ही लगता। तो ये सब बच्चों को मैं देखती हूँ, उनको देखती हूँ, तो तुम लोगों को देखती हूँ, उसमें जब उन्हीं की याद आ रही है। एक बहुत बड़ी खोज है तुम लोगों में, और आज हम माँ बाप का और अभिभावकों का, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही मार्गदर्शन दें, ताकि आप बनेंगे जिम्मेदार कल के लिए। और किसी का मेरा तो एक विचार और भी है कहते हुए, क्योंकि समय कम है, और मैं तो इनको बुलाने वाली हूँ अशोक भाई को अपने घर में, उनसे सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सी, हर विषय में उनके पास है बात, मैं सुनना चाहती हूँ। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि आप लोग अपने, जितना युवाओं तक ये बात जाए कि आप होंगे जिम्मेदार कल के लिए। स्वच्छता का सही अर्थ, वैसे देखा जाए हम लोग विकास का भी हमने अर्थ सही नहीं समझा है। सिर्फ निर्माण से विकास नहीं होता, विकास हमारी सोच से, हमारे विचारों में होता है। याद रखिए, सही विकास होगा, सही स्वच्छता होगी, तभी गांधी के सपनों को हम साकार करेंगे। गांधी का सपना क्या है? जो आपकी सच्चाई का सपना है। और आज जो देश चल रहा है, जो समाज, विश्व समाज चल रहा है, वो क्योंकि गांधी जैसे काम करने वाले कई हैं अपने क्षेत्र में, जिनके बारे में न कभी लिखा जाएगा न कभी लिखा गया है, लेकिन समाज चल रहा है उसी मातृशक्ति के कारण, जो हर पुरुष में, हर स्त्री में, हर बच्चे में, हर जीव में है। तो मैं उसी चिंगारी को, उसी को मैं प्रणाम करती हूँ आप सबके साथ, कस्तूरबा को, मातृशक्ति को और गांधी को, आप सबके साथ, क्योंकि वह जो सत्य की खोज है उस सब में हम लोग साथ हैं। गांधी को ढूंढते हुए हम स्वयं को जब पहचानेंगे तब गांधी मिल जाएंगे। Thank you very much, Tara ji and Vajpayee ji, for coming to IILM and spending time with us. It was a pleasure to have you share your thoughts with our students, faculty members, and guests. We will end today by Bapu's favorite bhajan sung by the students of Banyan Tree School. रघुपति राघव राजा